So I think we should start the space. Okay, now first thing first, our main motive of this space is to find out that whether we should worship Pitris or not. What is the difference between worshipping and performing of these Tarpan and Shraddh and all these ceremonies? What are the remedies like the Narayan Bali and all that? How are the memories generated? How do they affect our DNA? What is the problem with these Pitrus? Okay, so we are going to divide the topic one by one, so it will become easier for everybody to understand. Okay. Now, first of all, we should know how this thing came into shape. Now, if we go to the Vedic literature or our the ancient most system, you can say the Rig Veda, which mentioned in 10th chapter, 15 canto, it is mentioned as Pitri Suktam. Okay. Now, they are saying that you should pay homage to ancestors and ask for their blessing and guidance. The Yajurveda also mentions the same thing about the Shraddh ceremony, how it has to be done. The Atharvaveda also contains a very little, though it's very little kind of thing, but it is there. Okay. Now, the main textual evidence comes from Smritis and Puranas. Now, these two areas are basically the Apabhransha or the modified part of the Vedic law. It's not the exact Vedic law. Okay. Now, the Vedas, they were talking about something very different. Upanishads also, in Garbha Upanishad and in Chandogya Upanishad, there are two areas where Chandogya Upanishad, this is mentioned how to perform the oblations to the ancestors. जिसको हम श्राद्ध कर्म कहते हैं. Now the problem is not that you perform these things. The problem is how do you perform this thing, and in this there is a kuriti in our culture to pray to these deities. You can say Pitris. Now some of them in India and Rajasthan, we go to Gujarat, these are called devatas. Even Pitris are called devatas. One thing which is very simple to understand is that any human who is dead is not a devata. He reaches a stage of a spirit which is basically a ghost only. He is called Pitri because he's associated to our family. So he's not directly called a ghost. And when he reaches the Pitra Loka, then he's called the Pitri. Okay. That's not when they affect us. They affect us when they are in a different stage, when they are on earth and affecting our day-to-day activities. Okay. Now, this is the base from where everything has taken shape. Now, in what I believe in, these are books, obviously, they talk about so many things. They talk about even non-vegetarian food a lot. You'll be surprised that our own ancient classics say that you should offer meat and do that, and there's so many things like that which are controversial. Now, what I believe in is to look at the practical side of these things. There are two cultures in India, which in fact 3 or more cultures, which do not believe in Pitris. One of them is, which is a monotheistic culture, which is Sikhism. The Jains, which they also do not worship this thing. They believe in religious practices. They have meditation, prayer, fasting, and everything, but they don't do ancestral worship. Now, practically, these two classes are far better than us. They're not doing this, they're better than us. Now, this is a very practical example. I'm not saying anything about Hinduism. I'm not talking about anything about Sikhism or Jains. This is an observation which you can also see. If you're smart enough, you will see the difference between their lifestyle and our lifestyle. There is a lot of difference. Okay, I'm not, just trust me that I'm not into just praising those people. It is there. It is a truth which you can see this thing with your own eyes. Okay. Now we will come back to our original topic, that how these memories generate trouble, and how they are related to these Pitris also, and how they are related to ghosts and means and all those things, and all these things which we are going to discuss. Okay. Now, the Panchabhutas, the modern science had decided that the bhutas, everything is composed of bhutas, whether it's what modern science calls a non-living thing like a house or a structure or anything. They consider something which is not animated to be a non-living structure. The problem in Jyotish, there is a division called Dhatu, Mola, and Jiva. And the common misunderstanding about this thing is that
the dhatu and mool are not living and jiva is living, but it's not true. Actually, all are living. If you study the scriptures very carefully, you will realize that all of them are actually living. The problem is they are dormant, two of them, and the jiva is active. Okay. Now, everything is composed of these panchabhuta structures. Now, I'll give you a very, very subtle example of how these things are recorded. For example, if somebody in your family is not well, and I tell you to perform a puja, now that person will not be able to sit, he might not be able to do any puja, right? Now, in that case, what I will tell you is to put some water nearby, chant the mantras in a certain number of times, and then give that water to that person as charnamrit. That's what we do when we go to the temple. We are offered charnamrit. Now, have you ever thought about why we are offered charnamrit? Because the water carries the memory. That memory, that mantra chanting that you're doing is being recorded into water. It's not only water, even the places, the dharti, the earth element, that also records whatever you're doing. That is the reason why certain houses are so bad, certain houses have good vibes. When you go to a certain place, when there are so many atrocities has been committed, you'll see that that place is not good. You will not feel good at that place. Why? Because that place has the memory. That element, earth element, prithvi element, has stored those memories. Similarly, when we offer our the Vihavishyan to the Agni, when we are performing some homam, we offer the things to Samidha to Agni. Okay. Now, what is Agni? Agni is an element. It's the mouth of the Devatas. That is what we say. So when you offer something into Agni, it immediately is transferred to the Devatas. That's how the memory is so short in Agni. But the memories, other elements like water, earth, these elements have stronger powers. The most stronger power is in Akasha Tattva, which is a rare Tattva, which is very less in humans, and it can record anything from many generations. Water can't do that, earth can't do that, but Akash is a different that it can record things. That is why we call it Akashic records, because it's there in the Akasha Tattva. So what happens? What is happening over here? Everything that you're doing is being recorded. It's a kind of constant CCTV system. It's recording everything. So when we say that memories generate troubles, it's because when you think about that person, when you think about an individual entity, when you think about these negative elements, they basically come back because they're already there. They're not vanished. They're in your plane, in your portal. So when you think about them, there is a particular vacuum created near you. It's a kind of energy which is created and they come back. Similarly, even water, when in Vastu, it is specifically mentioned that you should not live near large water bodies. You'll be surprised that people do live over there, but it's been told. Now, if you take it in a negative way, you will not understand why it is being said. It is being said because if something wrong has been committed near that water body, it will be stored there and then it will impact you. It may happen that there will be nothing wrong over there and it may not impact you also. But because it can do that, so that is the reason why we do not stay near large water bodies. They can tamper with human emotions very easily. Water is a very important element inside the body. Okay, that's why the water tanks are kept in a separate particular area in the house. Okay, that is being defined in Stapatya. There are rules for that. So these memories are very, very important and they stick to everything. Why? Because nothing is non-living. You're wearing clothes, the clothes store your energy. Okay, if you wear the shawl of a saint, when he gives you his shawl, suppose you're gifted the shawl from a saint, whenever you wear that, you feel the warmth of that saint. If you have that sensitivity. Similarly, why? Because that energy was stored in that shawl. Similarly, everything, whatever you're doing is getting stored every time. Every time you're doing it, whether it is negative, whether it is positive, it is getting stored. So that is the reason why it can bring troubles in your life. And that is the reason why memories are very, very important. So when you're remembering a person, when you're keeping his objects in your house, and a person is dead, suppose a person, I've seen people, okay, I understand pain of the people because in my own family, I've seen very young people dying in past 4 years. It's not a very, I won't say it's something that you can forget. I won't say that because I understand pain.
The problem is that what people do is when I go to their house, they keep their memorabilia, they keep their, whatever they do. Suppose the person was a cricket player, they will keep all the belongings, their clothes, and everything is inside the house. Now, the person who was dead, who died a very, say, uh, strange death or say accidental death was there, he will not be able to leave earth because you keep on remembering that person again and again and again. This I have seen 1,000 times. Now the recent example of the lady which I shared also, I didn't give the whole picture actually. So when I told her to perform the Ekadashi Vrat for her husband, I gave this example, shared this example on tweet also. So I told her to perform the Ekadashi and donate everything to her husband so that husband can be released. Now she told me that she started doing it from the very day when after her husband's death, the first month Ekadashi, when she did it, she immediately had the same pain which her husband has. She became unconscious. Because the husband didn't want to leave. So you see, these entities are very, very strong. Specifically, when somebody has died an accidental death, it is very important to perform all the karmas, all the rituals which have to be done, which is different in each and every caste. They have to be completed properly and memories need to be reached. You know what Jainis do on the third day when the person dies? They take small stones, very small kankari, we call it. They throw it on the dead body and say, okay, boss, your and my relation was up till this day only. It does not matter whose dead body is this. They do it as a ritual to forget the person, though it's a very cruel kind of a ritual. I don't know how they do it, but still it is there. Okay, they have this process. Similarly, other religions have the similar process, but we need to perform the end rituals very carefully, specifically in accidental deaths. That's very important. Okay, now this is how memories are generated. Now how do the curses pass on through the generations? Now this was our second question. And curses, you must think one thing which you need to understand is that the curses cannot affect you. They are the part of your karmic process. You cannot blame others for cursing you. You have done something in some part of your incarnation or some past life, and that is the reason why curse is there. So you cannot avoid that. And curses actually pass on. Why? Because when a person, when he has that very complete power, complete intention, his own energy, his own punyas will change to the negative energy and form a curse. That is why the rishis never used to do curse everybody. Why? Because when you curse somebody, you actually, your own energy is destroyed. Your own good karmas are destroyed when you're cursing somebody. But that curse works. I have seen it in multiple horoscopes that curse transfers. If you do not, remove that curse by the process. Suppose the nowadays you'll see Venus and Mars are collected in the Leo sign. So most of the people who will come with the anger of a woman to you. Okay. Now, anger of a woman means a curse. It's there. Now, to remove that curse, you have to perform certain remedies to remove that curse. Otherwise, what will happen is this curse will take a shape of an energy and it will transmitting itself to the next generation. It will transfer to your son will transfer it to his son. So it will keep on traveling if you do not stop it. The more time it takes, the more older a curse gets, it becomes stronger and stronger and stronger. You cannot remove it after a certain time. So it has to be removed whenever it is there. So you have to be very important. It is very important to pay attention to curses. Don't do anything that can raise the curse. Of course, karmic debts are there, but this is important to understand. Now about the Pitri and Pitri dosha remedies and care. That's what we were talking about. The first topic I explained how this Pitri dosha came, this Pitri related thing came into shape. Now, a person who is dead is dead. This is very clear. We all know a person who is dead is dead. If he is dead, he will turn within the span of 3 to 13 days based on different kind of varnas and all. The energy will, he will be there in the form of a spirit near house. They actually surround your house. They look at all the activities, what you're doing and all that. But if you keep on worshipping them, if you keep on, like remembering them, they don't go there. They don't go them. And then there is a trouble. If somebody died accidentally, if somebody has done very bad karmas, only then that person is going to live on earth. See,
We always say everybody is Swargavasi. My father is, people say so and so person is Swargavasi. Nobody says my so and so relative is Narkvasi. Nobody says that. Everybody is sure about the good karmas of the person. Okay. But is it really the good karma which the person has performed? So this is the first thing. Why do you think a person should not reach a higher plane and should be on this earth in the form of a ghost or in the form of a spirit? Because he has performed certain karmas, and that is why Yama is taking his, Chitragupta has ordered him to live on earth, and he can't come back to a certain point of time. He has to follow the norms of whatever domain he is in. So this thing is to understand that anybody who does some wrong karma will stay on earth. It's not good people who stay on earth. Okay, they reach a higher plane. If you're a good person, the Vishnu Dutas will come to take you up. Okay, it is a very common thing. The good elements will come. The good deities, the good retinue of the higher deities will come to take you. But if you have done bad karmas, if you have died accidentally, if you have done something bad in your previous life or this life, then you will suffer from the Pret Yoni, and that is not good. It is simple. It is very simple. That it's not a healthy habit. If you keep remembering a ghost, you're simply remembering a ghost. The second problem, which I have seen, which is common, people in Rajasthan have seen it. I don't know whether it's there in other places or not. People do that. Okay, boss, my mother has this. My uncle comes in my mother. You know that possession and all. Now I have seen those families being destroyed by that ghost. You don't know who is coming in that person. First of all, it's a spirit. Obviously, it's a ghost. And then they offer him food and all that. Okay, my mother is there. Oh, my uncle is there in my mother and all that. So all this is nothing but sheer stupidity, because you're basically forwarding food to a dead person and you don't know who that person is. Even if he's your relative, it's not a good idea. And here you are not even sure who that person is. I have seen ghosts coming in people, taking possession of the people, appearing as pitris, and being fed, they become more energetic, they acquired more powers, they affect you, in a deeper sense. Now that is a problematic, that's a bad habit people don't understand. Okay, now we come to yearly Shrad and Tarpan. Now, yearly Shrad has to be performed after the death. That is true. That is what the Vedic texts were talking about. That is what the Upanishads were talking about. That you should perform the yearly Shrad and the Pitris will get something from it. Now, in these Pitras, basically, there are 9 specific Pitras which are mentioned. This is Agnishvat, Bahishat, Ajap, Somit, Rashmit, Updut, and Shradbuk, etc. Okay. Now these are 9 different. There are 9 different names. Okay. Now these Divya entities, they basically, the deity of these entities is Arima. They are not deities. It is specifically mentioned that Arima is the Adhipati of all these 9 deities, 9 Pitras, and Arima resides in Uttar Phaguni Nakshatra. Now, it's a common understanding that Maga is there. Maga is a bad nakshatra. It's related to all that. It's not so. Arima is the Adhipati of these Pitris and he resides in Uttar Phaguni Nakshatra. Now, these are called Pitras. These are not deities and they are not worshipped also. They are being offered oblations in a certain way. Like, for example, I told you that you perform the Shradkam within a year. After that, if you keep on remembering them in some way or the other, then there will be trouble. Of course, you can perform, some kind of donation in this Mahalaya Paks when it comes. But when you perform the donations only with this memory that okay, this person is dead, then there will be trouble. If you can perform the donation without that memory, it's well and good. Because I tell you a story about Neem Karoli Baba. He performed this. Once what he did was he performed a bhandara for thousands of people on Amavasya. He used to perform the bhandara on Purnima. Now this time he performed the bhandara on Amavasya near the Hanuman temple. Now people asked him, why did you do that? Because it's something very strange. You always do that on a Purnima day. Why are you doing that on Amavasya day? He said there were many people who were dead and they were very hungry. And because of this feeding today, most of them have been released. Their souls have been released from earth. So it means that you can, of course, serve them, but without any purpose. If you serve them
the way it is being written in the text, and you keep on remembering them, then the whole problem will arise, and there's no doubt about it. Okay, so this is one thing to remember, that if you want to perform the Shraddh, you can do it in the next year, in the 1 year time, whichever is there. And then after performing Narayan Bali and Tripandi Shraddh and everything, don't do it again. Okay. If you want to donate something during the Shraddh Mahalaya Paksh, then donate it without any emotions or sentiments attached to that. Okay. If you keep on attaching your sentiments, I tell you the story about Markandeya Purana, about the Rochya Rishi, sorry. Now, how did his pitras overcome him? Because he was emotional. They told him, "Okay, I am your father. He's your grandfather. He's great grandfather, and you should do something about us." Now, this emotionality was their tool to, create problem for Roche, and he married. He left sannyas. Foolishly, he married another lady, and he gave birth to Ruchi, to Roche. So this problem happened because of the memories only, because you keep on remembering, because you keep on becoming emotional. So this thing have to be understood. If you want to remember your father and mother, there's no problem in it. If they were good people, do some good deeds in your life. It's the easiest way to remember them. Donate, to ashrams, to poor people. That's the best way to remember your father and mother. Do follow the rules which they laid down in their life. That's the way of giving respect to your father, mother. All these ritualistic stupidity is not what you're going to. They're not going to get anything from that. Okay, there are many stories regarding this matter. Okay, so I don't want to go into any controversy, because the story which I wanted to share is a little bit controversial. It's an actual story, but it is controversial in the context because it talks about Brahmins and how they botched up this process for their own individual, what do you call it, whatever you call it. Okay, so I'm not sharing that story despite the fact that it's a true story. Now, uh, again, coming on the memories, when you perform these things, there are three processes, like Narayan Bali is done, and this is done on always done on the Gaya Kshetras. There are three Gaya Kshetras. One is in Orissa, another is in Andhra, then another is Bihar. Orissa, it is Jajpur. Andhra, it is some place I don't remember, and Gaya is also there. The problem with Gaya Pandits is that they perform Narayan Bali within 2 hours. Narayan Bali is a process which requires days. Like this whole process, Narayan Bali, Tripandi Shraddh, and all these processes till home, they require 3 days. Now, what they do is the clients, basically the people who go over there, okay, boss, cover this thing in within 2 hours and all that. So they perform this ceremony within this particular function or part of the ritual within 1 day, within 2 hours, 3 hours. So obviously they are not doing it. So even if you go over there, spend your money over there, it is not going to help you out. The process requires to done properly. In Gokarna also there is an old temple, Shiva temple, which is related to moksha actually. It's a very old temple. And that is why the Shad karmas are being performed over there in a very specific way. So that is why I recommend Gokarna, because the Pandits are good over there. I don't have any relation with them. I don't know them actually. But what I have heard from people are they are far better than any other Pandit. Even in Jajpur, they do all these rituals with a, all these things are like, completed within few minutes. That's what they basically do. Now, there are rules against worshipping Pitras also that I already mentioned. Gita talks about Srimad Gita talks about these Pitras pujas in particular shlokas. It says that you should not worship them, because if you worship them, you will go in their domain. Okay, you will not reach the higher plane. So that is very important thing to understand. Anybody who wants to say anything cannot say anything against the own. It's a sacred text. Gita is not an ordinary text. It's something which talks about karmic debts. It talks about karma. It talks about how the karmas affect you. The main essence of Gita is karma. Now it is saying that you should not worship ghosts, and despite of that fact, everybody is afraid of pitris and they perform puja. See, performing rituals and performing puja is entirely different thing. Worshipping them is idioticness. Performing the rites is not idioticness, because you're giving them a way to relieve. They get released, they leave their place, leave their domain, and go on a higher plane, so that it don't bother you afterwards. So once you have done those rituals, don't fall into the trap of remembering them again and again, because it is going to create some kind of a problem later. Okay,
So there should not be no repetition of these things again and again. Once a person has gone, it is gone. If you keep the photos, if you keep their clothes, if you keep their jewelry, if you keep their things, if they're good, it is okay. Nothing will happen. But if they were bad, they will affect you. So it's a kind of Shudra, okay? In Jyotish, whatever the planet represents them, it's not a good planet, okay? So it's not something, it's a fact which I'm talking about, okay? So if you want to do the remedy is very simple. Do the Tripindishra, do the Tilhom. It is mentioned in books. What I'm talking about is not, I'm not talking about the people or Pandits, what they say. I'm talking about something which I've taken from the Granthas specifically. It is Tilhomam which is done when they are in the Preta form. Yam Puja is done, Tripindi Shraddha is done, Narayan Bali is done. So these are done in particular order, and once they are done, everything is over. You don't keep on remembering your negative entities. In the Vaishnava Dharma, worshipping these Adeva, these are called Adevatas. These are not Devtas, Gandharva and Yaksh. All these are Adevs. Even Nagas are Adev. We don't worship them because they are not Devatas. In Vaishnav Sampradaya, it is important not to worship these these Devtas or whatever you call them. Okay, I don't call them Devtas because they are not that. Okay, now comes to the saints. See, saints also leave their objects. So, but they were good people. They have done a lot of spiritual penance in their life. So they have generated very good memories, spiritual powers. Those powers, this positive energy are stored in the content, which in the objects which they have. So once you have them, they are not going to impact you. They are not bad. That is the reason why we keep the photographs of our gurus and saints in our own house. Even I have a photograph of my guru in my house. So it is not going to affect you badly. It is actually going to help you out. So these are good memories. Okay. Now about antiques and artifacts, I told you that they carry certain very negative vibes and they can affect you. I have seen it many times that if something is related to some gruesome history, it can affect you a lot. So those antiques and artifacts need to be cared. I mean, they should not be taken to your house. You should be careful about them. I've been to museums. I've seen places. Even once will tell you about an incident. We went to this Albert Hall Museum. It's a very famous museum in Jaipur, and my children were there, and they're very sensitive actually. So we reached the hall, and nobody told them anything. There was a box kept in the hall. Both of them, they just didn't go near it. They just kept away from it. So I was like, let's see what is in the box. And so I read it was a mummy actually. So that body was inside it, and without even reading anything, both of my children had this strange sense that there is something wrong over there. They didn't went near it. So you see, children can see it. You because we adults, we have lesser sensitivity towards the environment. We ignore all these facts. Children remember it. We force them to do all the wrong things. But if you observe them carefully, they have these sensitivity towards wrong things. So they would show that something wrong is there, and when I told them, okay, this is there, they didn't went near it at all. So because it carried something very wrong. Okay, so these energies, these antiques and artifacts, they should not be carried. There are many stories. There is a story about Kiro also, where a person there he predicted the death of the person, but he didn't know how the person died. The person bought a mummy actually from Egypt, and because of that, there was a curse associated to that mummy. The curse was transferred to that person, and the person died later on. So Kiro already predicted that death beforehand, many years back. So all these things happen. They are not, see, whatever the scriptures tell you, whatever the Pandits, Pujaris tell you, look at the actual examples in life. That is the real book of life. You don't become wiser by reading books. You become wiser by observation. Whatever today, even if I'm telling you something, it's not useful to you. You know why? Because this is not the first-hand knowledge. Whatever you're gaining is a second-hand knowledge. It's my knowledge. Now you have to obtain your own knowledge by observing things. So that is very important. So the practical side is more important than granthas and all those things. Okay. How do energies get stored in object? It's very simple. They record everything. So they record and these things are there. Now, how do you flush these memories? In the case of
The ghost, there are certain issues. If there is an issue, if you're karmic debts and there are spirits which are affecting you, there are certain rituals to be performed for that. We prescribe those rituals and those things, they can get away from the person. But in the case of Pitris, we perform these all these things, the rituals which I told you. In the case of objects, you just drop them in the water bodies so that their memories are dissolved inside in the water and they go away. That's what it is being done. If you keep them photographs, keep it inside so that you don't look into them every time you pass that particular place and remember your dead ancestors. So that is very important that you should understand. And the same goes with the place with gemstones, jewelry, etc. They also create trouble because they retain the memory for a longer period of time. Jewelry specifically, gemstones have this tendency to remember everything. If you have read about Samantak Mani, related to Bhagwan Krishna, it's a very famous story. So that Samantak Mani has the power to give you gold. Now, after a certain time, it killed the bearer also. Why? Because the bad memories were generated into it and it acquired a bad taste. So gemstones, whatever we understand about them, our knowledge is very less regarding that. Because I've read many ancient classics regarding gemstones. They don't work according to what we understand. They are related to planets, they don't work on planets. They are not directly associated to planets, they have their colors associated to planets. There is a certain mathematical thing which is related to planets and gemstones, which I can share, but it will be misused. So I never shared it, I just discovered it. There is a relation between gemstones and planets, but it's a very different relationship. Even a gemstone, if a planet, suppose Saturn is very good in your chart and you're wearing Neelam, it is not going to show you good effects. It's not necessary, because it might be possible. You see, it's a very strange thing. It's a coincidence, you can say. Most of the areas where the gemstones are obtained from, like if you go to Sri Lanka, there was a problem with Lichte. If you go to Kashmir, there is always a problem. If you go to Cambodia, there is always a problem. If you go to Africa, there is always a problem. If you go to Burma, there is always a problem. So how come these gemstone areas have, mines areas have problems? There is something associated to gemstones which we don't know. Gemstones have a tendency to store things for a longer period of time. Mahaperiyava once mentioned about this thing, how the Vishnu Sahasranam was recorded and how it was captured and transferred. So it was a gemstone which was recorded. I don't remember whether it was Vishnu Sahasranam or something else, but it was there. So it was the gemstone which was recording that thing. So gemstones have a power to retain memory for a longer period of time. So they are more dangerous than ordinary jewelry or ordinary pieces. So this is how they get transferred. Like there was a story about this one Neelam which was there in Shiva Murti in Madhya Pradesh, and this was taken out by one British officer. He because he was not allowed inside the temple during the British time, so he used to live outside the temple as a beggar. So once he got the chance and he entered the temple, took out the stone from there, and that stone destroyed everyone's life, because it obviously you are removing it from Shiva's murti. The ganas are there who get enraged, so they destroy the life of the person. So every gemstone is not beneficial. It is not necessary that a certain planet is beneficial in your chart, so the gemstone will be beneficial. It depends on kind of pujas, the memories that you generate. Of course, you can remove the bad memories in a thing and you can generate good memories, but that requires time, that requires patience, that requires penance. Everybody is not, going to do that for you. So that is something very difficult. That is why pujas are conducted in gemstones, so that prana can be aroused in those gemstones. That is what we do in murtis also. Murtis are basically, what are they? What do you think which is Prana Pratishtha? Prana Pratishtha is nothing. We are basically in metal or stone, we are basically inducing some kind of energy which stays over there. This is called Bimb in Jyotish. We check on those Bimb every now and then whether it is reducing or whether it is increasing. Reducing means the energy is getting reduced or getting increased. So if the Bimb is getting power, how does it get power? By chanting, by regular chanting, by offerings. That Shakti gets power, and that is how the Bing is stored inside that particular stone or whatever the murti is made of. So they actually are storing our mantras, our processes. What is there in Vaishnava Devi? Why is this Tirtha so important? Because for thousands of years, people have been chanting a particular strotas, hymns over there, auspicious
mantras are being chanted every day. So the stones, the walls, the cave, the pindis, they're restoring that energy, they're storing that formation from thousands and thousands and thousands of years. They have the power to reduce up your negative energy within seconds. So that's why we tell people to go to religious places. That is the base why we tell you to do that. They have good memories. That is what a religious place has. It has good energy in the form of memory. So this is how it really works. Now I am open to the questions. No questions? Okay. We have a request. No. Request, yes. Bhavish. Yes, Bhavish, you believe. You can speak in Hindi or English, whatever you like to. Okay. Bhavish ji, can you hear me? जी नमस्कार हाँ नमस्ते, बोलिए. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने स्टार्ट से कहा था कि बस एक टाइम 12 डेज में जो करते हैं उसके बाद करना नहीं चाहिए बट वी सी मोस्टली पीपल डूइंग श्राद्ध मंथ ईयरली so it should be done on yearly basis or as per tithi Now, see, twice. you do Shradham again and again. This is not necessary. What these are basically they earn, Pandits earn through that. They will tell you to do it again and they will earn through it. That's a simple thing. There's no reason for that. Okay, once you have done, you have say if you go to Gokarna, you ask any Pandit about it. He will tell you, boss, you have finally released the ancestors to a higher plane. Why are you doing Shraddh for them? You just do donations. Go to a poor person. Look at the life of the saints. Aren't saints more important than us? If you say that an ordinary pandit is more important than Baba Neem Karoli or Maharaj Ji or say Mahaperiyava or anybody or Raman Maharishi, for example, if you say that these people, these pandits are more intelligent than that, then it will be like a joke. See, these saints will tell you only one thing: donate food to poor people, to hungry people. That's what you do for anybody. Whatever you want to do, just donate food for poor people. Don't remember them. I'm not saying, just do it as a good deed. Okay. And you can do it in Mahalaya also. Don't do the annual Shraddh and all that process because it will keep on going like this. Yeah, okay, thank you, sir. I have two small questions. So, by chance, if they get in our dream, like once in a while they instruct us to do something, and second, can we keep the ancestor photos near like the drinking water, जो मटका कहते हैं, nearby that? Thank you. No, I don't know. I don't know. I have heard that people keep patras, these metal patras, in their house. I have heard about matkas also, which they keep in their house. But that's all wrong rituals actually. Because you're why do you keep a, why do you keep a ghat? Ghat is basically it invites the prana in it. We even if you understand the spiritual process, ladies of the house are told not to keep this आटा जो होता है ना गोल करके उसको नहीं रखते हैं. आपको मालूम है ये चीज? पुराने जमाने में जो पुराने लोग थे वो आटे को ऐसे गोल करके पिंड बना के नहीं रखते थे. आपको मालूम है ये चीज? क्यों नहीं रखते थे मालूम है? क्योंकि पितरीज उसमें आके It's डिपॉजिट हो जाती हैं. equal to, yes, हाँ, it's इसलिए नहीं equal to रखते some थे. dead तो वो cycle. इतना बुरा चीज है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. घट क्यों नहीं रखते हैं? आपको पता है तंत्र नींबू से क्यों किया जाता है? पूजा में नारियल क्यों यूज होता है? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर घट शेप. ओके, सो it is not good obviously whatever you're talking about. I can't hear you properly but I did understand that you're talking about some matka and water, right? ये तो सही है ना? ये बोला ना आपने अभी? जी सर. हाँ, तो वो सही नहीं होगा सर. जहां तक मैं जानता हूं, मैंने जहां पर भी होते हुए देखा वहां कुछ गड़बड़ जरूर होती है. See, इसका बहुत सिंपल तरीका, देखिए मेरे लिए तो बहुत सिंपल है. इवन अगर आपने कोई उपाय नहीं किया होगा तो भी मालूम पड़ जाएगा. तो मालूम तो पड़ ही जाता है कि व्यक्ति सफर कर रहा है. और मैंने आपको बताया उसका सही रिचुअल क्या है, उसका तरीका क्या है. अगर आपने एक बार वो कर दिया
आप खुद सोचो ना सर, एक बात सोचो, जैनी और सिख ये नहीं करते तो उनको हमारे हिसाब से तो बर्बाद हो जाना चाहिए। जो धर्म हम फॉलो कर रहे हैं ना, जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, मैं तो हिंदू हूं और मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता रहूंगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जो प्रैक्टिकल है वो तो आंखों से दिख रहा है, वो हमसे बेटर कंडीशन में जीते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की आधी फीसदी दौलत या तो सिखों के पास है या जैनियों के पास है। पता है आपको? हमसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में रहते हैं कि नहीं? ये फैक्ट है। तो अब आप खुद बताइए कि हमारे रिचुअल्स वो फॉलो नहीं करते, है ना? हमारे रिचुअल्स, सॉरी, वो हमारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। आपको जानकर रहना नहीं होगी कि जैनिज्म में बहुत सारे रिचुअल्स हिंदुइज्म से ही गए हैं। चाहे वो कितना भी बोल लें कि वो बहुत पुराने एक्चुअली उनमें से कुछ सिस्टम जो है वो हम में से ही गया है, हमें ही फॉलो करते हैं, लेकिन वो हमारी कुरीतियां फॉलो नहीं करते, तो वो मुसीबत से बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है सिखिज्म कोई हवा से नहीं पैदा हुआ है? गुरु नानक देव जी ने उसे भी कहीं से लिया है। एक निराकार ब्रह्म की जो उन्होंने सिस्टम बनाया वो कहीं से तो लिया गया है ना। तो उसके अंदर उन्होंने उन बुरी चीजों को क्यों नहीं लिया? कोई तो वजह होगी, और प्रैक्टिकल तो हमारे सामने है। राइट सर? जी धन्यवाद ओके आनंद सर। जी। हाँ नारायण सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? नारायण सर, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Can you hear me? ओके, यस आई कैन हियर यू। All right. So, um, if given the fact that we don't need to keep the photos, what is the best way to dispose them of? You can put them in water. That's the easiest way. Put them Water in. actually removes the memories from them. That's the easiest way to do it. Right, but here in the US, you जी. can't just throw things Yeah, here and true. there. You can leave them under the people tree if you want to, or you can keep them in a box or somewhere, but don't keep Okay, on remembering them. The major purpose is that you should not look at them, because if you keep them right, hanging on the wall, whenever you pass through them, you'll right, look at them, and when you look at them, you will memorize them. That's very simple. You right, know? right, right, right. So when we next come to India, that's where we can dispose things off easily. Yeah, you can. Of Yeah. course. Okay. Thank you. Thank you. Yes, sir. Bhavatarini Maheshwari. Yes, please. You want to ask something, Bhavatarini? Yes, sir, I want to ask. May I? Yes, sir, of course. Uh-huh. Sir, curses, no. Supposing I am doing all the time good for somebody, Okay. my intentions, my actions, everything. But supposing if the other person doesn't understand, for some, I don't know, poor janmaka, some problem or whatever it is, if that Yes. person keeps on cursing, will that curse, because I am doing, thinking everything good only, will that curse still affect me or will it not? It depends. See, sometimes what happens is even if you do the best in the world, people still curse you. You'll be Huh. surprised. Even Shankaracharya was, Abhichar was done on Shankaracharya, Bhagavad Correct. Gita. So even if you're the best in the world, you can't escape this blackness. This darkness cannot be escaped. Now, how does that darkness affects you? That is deep within your karmic debts. If your karmic debts are not there, no matter how much other person curses you, it is not going to affect you. Even if he's a god and he curses you, see, everybody has to follow the order of Kala, Niyati. You cannot change it. If Niyati tells you to do that, then nobody can escape it. Even God has to follow the order. If Niyati says that you haven't done anything wrong and if there is nothing wrong being done by you, nobody can curse you. No matter what he says, whatever she says, or whatever he says against you, it is not going to work. So you don't have to worry about it. Hmm. And if you Okay. think it is Okay. working, then do something Ah. else. Like do something means like any sadhana you are suggesting or No, what, sir? no sadhana, nothing. No. I never suggest any sadhana actually. Like for example, Uh, suppose I've seen these cases recently. I shouldn't talk about it, but people who are here, they might be involved in the same thing. The cases might be associated to them. So suppose somebody does two marriages in your house. Okay, the first lady okay. has been left.
Now she will curse the whole family, right? Correct. So I have seen in the scriptures that you perform the Tulsi Shalagram Vivah, you perform the Radha Krishna Vivah, you perform the, if you are on the female side, you perform the female Vivah, Devi's Vivah. If you're on the male side, you perform the male Vivah. Now this is a way out of the curse, but you have to perform depending on the curse. It can be performed for 5 years, regularly every year, once every year. We do the Kalyanam in the temples only. You know, you must be knowing about it. You belong to South of India, I think. So you must be knowing. Yeah, South Yeah, I Indian. can see in your accent. So if you know about that, you will already be knowing how you perform the temple Kalyanam in temples. So this is Yeah, how yeah, yeah. when the person is not getting married, we perform the Kalyanam depending on the deities which is reflecting the person. So this is how it is being done. So Oh, it depends on the problem, the level of problem, whether it is there or not, and how it can be removed. okay, sir. And one more question, may I Yes. ask? Sir, in our family, I mean, so many brothers, sisters. No, one child of every brother, sister. No, either having marital problem or they are not getting married. Astrologers are telling some I mean, Purvaj ka, their ancestors ka, some curse is there because of that. So you all have to come together and do a puja, which we are not able to rope in everyone at the same time. So, but is it possible? I mean, that kind of thing. That's why It's not one possible. person or the other, No. sir. Because see, marriage, if marriage is not happening, right? Yeah. Marriage, the problem related to marriage is not associated to Pitris. Pitris basically create health problems. They have specific issues in your life. It is very rare that marriage problem is created by Pitris, specifically when a person has died unmarried in your family. Okay, if some female has died, Okay. then it will happen on the female side. The male has died, it will happen on the male side. If that person has died unmarried, or if that person has been rejected or left and second marriage has occurred, then these kind of curses will happen. In that case, the Kalyanam is the best remedy. Go to whichever deity you worship. Like if you go to this Tirupati Balaji, you perform the Tirupati Kalyanam. If you go to Okay. Ganesh, Okay. Hello. right? Yes, Hello. I can hear you. No, in between, no, your voice was not Okay. audible. Last one line, can you repeat, please, if you See, it don't depends on mind? the curse. So if like whatever the curse is, if it is related to marriage, then it should be removed by Kalyanam only because it is associated to Kalyanam. Okay. However, I don't know. It must. Pitris don't usually do that. What you're talking about, they have specific things like Nagadosh. It has specific disorders which it creates. Because I have been working out in for many years, so I know by just by looking at the problem, I can tell you, okay, this has been done by this thing. But I have to find out the exact DT which is doing it. If that DT is like it can be propitiated by going to the temple. Usually, what we tell is we tell the person, if it is on the male side, we tell the person to perform the female kalyanam, like this Devi's kalyanam, and if it is the female Okay. side, we perform the male kalyanam, like the Tirupati kalyanam and all that, Perumal kalyanam. Srinivasa Kalyanam. So Okay, regularly, but okay, it should sir. be done like for 4 or 5 years because till marriage occurs. Okay, so that means the removal of the curse is there. It takes time. See, curses are not removed easily. If it is old, it will be removed. It will take so much time that you will be shocked. So sometimes it takes 12 years. So it depends on the type of the curse which is there, the kind of energy which is there, and then the removal process is being organized. That is how it is being done. Oh, okay. Okay. Okay, Yeah. sir. Okay. Yeah. Thank you so much. Yes, Nikhilji, बोलिए. Nikhilji. Yes. Yes. थॉट्स आलोक जी, एक सवाल था मेरा, ये अभी आपने जो बताया पितरों के बारे में, जी. एक जो आम धारणा है कि पितृ वापस जन्म लेके आते हैं, जैसे पितृ अभी कई बार, हाँ मतलब जैसे कई बार बोला जाता है कि इस व्यक्ति ने आपके घर में जन्म ले लिया. हाँ, ये जरूर पितृ ही जन्म लेके आए हैं। सर और एक चीज क्लियर कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे, सॉरी आपको रोक रहा हूँ. जी 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 पितृ जो होता है उनका एक लोक होता है, एक पर्टिकुलर एरिया है चंद्रमा के पास जहां उनका लोक माना जाता है, स्थान माना जाता है ना. जी 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 तो वो दोबारा जन्म नहीं लेते हैं एक्चुअली. वो तो उनको पितृ नहीं बोलेंगे.
अच्छा। Basically, your own relative is taking janm in your family. That is possible. But Pitri is taking janm in your family, that is rare thing. And the word itself is wrong because वो तो ये हुआ कि किसी की मृत्यु हुई और उसने आपके घर में दोबारा जन्म लिया, है ना? अच्छा। वो तो उस लोक में ही था तभी तो जन्म ले पाया, या पितृलोक में नहीं जाने के बजाय उसको कहीं और भेजा गया और वहां से उसने दोबारा जन्म लिया, वो तो पॉसिबल है। ओके ओके। तो बट तो जैसे आप अभी पूछना क्या चाह रहे थे? आपने एक पुराण की कहानी अभी सर रेफर करी थी, मैंने भी एक पुराण जी में शायद अगस्त ऋषि थे या कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस कहानी जी में ऐसा होता है कि उनके पितृ उल्टे पेड़ से लटके हुए हैं और वो जी। उनको बोल रहे हैं कि तुम शादी करो और बच्चा करो तो हम मुक्त होंगे। तो वो रेफरेंस दे रहे हैं कि तुम अभी तक क्यों, मतलब ये तपस्या ये सब क्या चल रहा है, आई डोंट टू गो एंड गेट मैरिड एंड सो दैट इट विल हेल्प अस। तो सिमिलर स्टोरी। हाँ, तो कई बार ये कहानी पढ़ के थोड़ा सा मन में संशय भी आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल टिल दैट आई हैवंट थॉट ऑफ कंसीविंग, वी हैवंट गॉन फॉर दैट थिंग। तो कई बार ये फियर मॉन्गरिंग भी सोसाइटी में होती है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो पितरों का श्राप मिल जाएगा, दे विल कर्स यू, दे विल फील बैड कि व्हाई आर यू नॉट, आप एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे हो लीनिएज एंड ऑल दैट। तो वो निखिल उस जी, मुझे तो देखो हाइपोथेटिकल। एक चीज पता है, देखो पर्सनली बता रहा हूँ, है ना, एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जी वैष्णव धर्म में किसी भी पितृ को किसी भी तरह की ये उल्टी सीधी जो पूजा होती है ना, मैं लोगों को बहुत कहता हूँ मत करो जी। मत करो, पीपल डोंट लिसन बिकॉज इट इजी। इजी हम्म, क्यों बताता हूँ? देखिए, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप कौओं को भोजन कराइए अमावस्या के दिन, यस यस। काम आसान हो जाएगा, आपको परेशान करना करेक्ट बंद कर देगा। फैक्ट। करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट। मैं आपको बोलूंगा कि सर आप ऐसा ऐसा कर लीजिए तो ये हो जाएगा। वैष्णव धर्म में क्या करते हैं कि भैया एकादशी का व्रत करो और उसका जो फल है अपने पितरों को दान कर दो। तो दे दो, सही बात। हाँ, तो डेट इज द बेस्ट रेमेडी। कुछ नहीं करना है, वो एकादशी का व्रत कीजिए, पूर्ण निराहार रह के कीजिए, प्रॉपरली कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एक भी पितर नहीं बचेगा, एक साल में सब चले जाएंगे, है ना, एक वर्ष के अंदर अंदर सब चले जाएंगे। देखिए, डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डर तो समाज में हमेशा से रहा है। इतने सारे लोग भूतों की पूजा करते हैं, मैंने देखा लोगों की सवारी आती है। मैं कई बार जैसे एक जगह गया जहां पर एक व्यक्ति पे सवारी आती थी, वो लोगों के भूत वूत उतारता था। जब मैं वहां पहुंचा तो मतलब उस आदमी ने, मैंने उससे ऐसे ही मजाक में वो सबका भविष्य बता रहा था, मैंने भी पूछ लिया कि जिज्ञासा थी, यंग बच्चे होते हैं तो होता ही, तो मैंने भी पूछा कि मेरा क्या भविष्य है। तो आपको हैरानी होगी कि उसको मतलब ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ लियो। मतलब वो इतना डर गया, वो कहता था कि मेरे अंदर देवता आते हैं ना, ऐसा कुछ समथिंग आता भी था कुछ उसके अंदर, आई डोंट नो व्हाट एवर इट वाज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट लाइक द प्लेस। दूसरी बात ये कि जब उसने मेरे बारे में बताना शुरू किया तो उसकी गर्दन एकदम से अटक गई और वो बहुत देर तक बोल नहीं पाया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मार रहा है। तो उसने बहुत देर में बोला कि तुम, उसने उसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वो वर्ड एक्चुअली एक प्राइवेट वर्ड है जो मैं देवी के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वो किसी को नहीं पता, मतलब ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता, है नहीं, मेरी वाइफ को भी नहीं पता था। तो ही डायरेक्टली सेड दैट कि वो तुम्हारे साथ बैठी है और वो मुझे बोलने नहीं दे रही। तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, एंड शी टोल्ड मी व्हाई यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस इडियट, गो आउटसाइड, व्हाई डू यू कम टू सच प्लेसेस। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? समझ ये गया जो समझ गया। चीजें हैं ये सब बुरे और गंदगी से भरे हुए लोग हैं, इनके कुछ भी करने से आपको पता है होगा क्या? आपने कभी पितरों की पूजा की, आपको मालूम है क्या होगा? आप उनके ऋणी बन जाओगे। आप किसी प्रेताविष्ट व्यक्ति के सामने होगे तो आप उनके ऋणी बनोगे, आपको मालूम है? आपने अपना पुण्य नष्ट कर दिया, क्योंकि आपका जब दोबारा मृत्यु होगा तो आपको उस समय के लिए जो ऋण आपने दिया है आपको प्रेत योनि भुगतनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सड़क पे चलते हैं, अरे कोई देवता मिल गया, हाथ माथा जोड़ लिया, अरे भाई तो तुम किसको माथा टेक रहे हो ये तो देखो कौन है वहां पर। तो पीपल डू दैट एंड देन दे सफर आल्सो कि भाई मैं तो जब से उस मंदिर में गया मेरी तो तबियत खराब हो गई। आई हैव सीन पीपल जो मुझे बताते हैं, यहाँ पे एक मंदिर है आमेर के पास में, वहां कोई लेडी गई थी, वो 8 साल तक प्रेताविष्ट रही, वो प्रेत से उसमें आवेश आता था रेगुलरली 8 साल तक। कैन यू इमेजिन? शी वेंट टू अ टेंपल। अब आप मुझे बताओ टेंपल में जाने से ऐसा कैसे होता है? आपको पता है प्रश्न में अष्टमंगल प्रश्नम होता है जो जो कि देवताओं के लेके जाता है। हम बोलते हैं लोगों को कि इस मूर्ति में भगवान है ही नहीं, आप प्रेत की पूजा कर रहे हो बहुत सालों से। और आप अंदाजा लगाओ कि आप, इसीलिए मैं मना करता हूँ लोगों को आम मंदिरों में जाने से। लोग सोचते हैं कि पुजारी जी हैं, हमारे यहाँ के बगल में मंदिर है, 6:30 बजे पुजारी आता है, 5 बजे लोग जाके खड़े हो जाते हैं। अब आपको तो कितनी शर्मनाक बात है ये। कहने को लोग कहते हैं कि साहब पंडित पुजारी बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं हो सर, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, नो डाउट। बट जो ये कर रहे हैं वो गलत नहीं है। क्या इस तरह से देवता उसी मूर्ति में रहेंगे? क्या उनका बिंब और शक्ति वैसे ही विद्यमान रहेगी जैसे कि रहनी चाहिए? नहीं रहेगी। तो और हम उसके सामने माथा जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। माथा टेकेंगे तो आपको पता है क्या होगा? आप उसी वक्त उसके ऋणी हो जाओगे। आपको क्या पता उसके अंदर क्या है उस मूर्ति में?
आपको पता है, हम जो टूटी हुई मूर्तियां होते हैं ना, हम लोगों को घर में बोलते हैं घर में मूर्तियां मत रखो, मूर्तियां मत रखो, उसमें कभी भी कोई नेगेटिव चीज आके बैठ जाएगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेटल है, मेटल है या पत्थर है, उसकी उसमें ये सिस्टम है मेमोरी स्टोर करने का। तो वो जिस दिन आप कोई गलत चीज होगी वो उसमें आके बैठ जाएगी, आप उसको माथा टेकते रहोगे, वो आपका भोग उठाती रहेगी और वो स्ट्रांग होती चली जाएगी, आपको मालूम है। ओके ओके। इसलिए हम लोग ये सब चीजें करने से मना करते हैं। लोग समझते हैं लोग को तो बस पुरानी धारणा बनी हुई है, तो जो चल नहीं रहा है सर, वो चलने दो। नहीं सर, थैंक यू टू यू, क्योंकि मुझे याद है मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना स्टार्ट किया और मेरे को बहुत भयंकर प्रॉब्लम हुई। आई कांट टेल यू कि हाउ मच आई सफर्ड, बट देन यू सजेस्टेड कि ये सब बंद करो, देन आई स्टॉप्ड एवरीथिंग, एवरी स्तोत्र पाठ एंड एवरी दैट, एंड आई एम हैप्पी नाउ। मैं सिर्फ राम नाम जपता हूँ, विच यू हैड हाँ, सजेस्टेड। भगवान का नाम लेना, देखो यार, मैं ये नहीं कहता, मैं कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ जितना मैं भगवान का नाम लेता हूँ ना, इतनी आसानी से कोई लेता भी नहीं होगा, लेकिन जो तरीका है वो तरीका तो तरीका है ना, उसको तो मैं नहीं बदल सकता। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई उठो किताब खोलो और भगवान का नाम ले लीजिए, कोई प्रेम थोड़ी ना भगवान से सही बात कि है। हम किताब पढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनके सामने बैठ के किताब थोड़ी ना पढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे ना। तो करेक्ट। भगवान से भी बात ही करी जाती है, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि हम किताब लेकर बैठ गए, वो भक्ति नहीं होती ना। करेक्ट। पर लोग नहीं समझते, उससे रेटिन्यू जो है इंगेज हो जाता है, फिर वो बाद में हमें नुकसान पहुंचाता है, फिर लोगों को तकलीफ होती है। तो वो समझाना बड़ा मुश्किल है सर, बहुत टिपिकल टॉपिक है ये। सर लास्टली कैन यू आप कुछ हाईली चार्ज स्पिरिचुअल प्लेसेस इंडिया में सजेस्ट कर सकते हैं जो कोई भी विजिट कर सकता सारी है? जगह सर, आप कहीं पर भी चले जाओ, देखो जितने भी बड़े मंदिर है ना जी साउथ में, बहुत सारे मंदिर हैं, उसका जी तो कोई एग्जांपल है देने की जरूरत ही नहीं, इट्स ऑलरेडी देयर। जी एंड जी। नॉर्थ में भी बहुत सारे टेम्पल है, महाकालेश्वर है, बहुत सारे। अब धीरे धीरे उनका बिम नष्ट हो जाएगा, जैसे ही आप बेचना शुरू करोगे, 750 रुपए का टिकट कर दिया महाकालेश्वर हाँ का, महाकाल का। हाँ जी। ये शर्मनाक हद से हैं ये, एक्चुअली हमारे देश में जो कलयुग का प्रभाव है ना वो दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं लोगों को दिख रहा है कि नहीं, थोड़े दिनों में उनको भी दिखेगा। भगवान असल में दिख रहे हैं धीरे धीरे, जी अब वो जब बिक जाएंगे तब उनकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। साउथ में क्या अभी भी कट्टरता है, है। मुझे वो कट्टरता अभी भी पसंद है। हम्म, धोती पहन के घुसो, जीन पहन के नहीं घुसोगे, हम्म, उपवस्त्र नहीं पहनोगे, बनियान उतार के अंदर आएंगे मेल्स, देयर आर रूल्स फॉर दैट। जी तो वो क्यों है, उसकी वजह है। अब लोग उसे फॉलो करना चाहें नहीं करना चाहें, दैट इज देयर प्रॉब्लम। नॉर्थ में तो बिल्कुल हालत खराब है, आप पैसा दीजिए काम नहीं करते। किसी की बुराई नहीं करता, पर सच्चाई तो यही है। बहुत कम मंदिर ऐसे हैं नॉर्थ में, जहां आप ऊपर जाते हैं हिमाचल की तरफ, आप उत्तराखंड में जाते हैं तो वहां आज भी सेवा प्रॉपरली चल रही है, वो भी किसी और तरीके से चल रही है। साउथ में हम जाते हैं, एक्सट्रीम साउथ में कई मंदिरों में, तो वहां सेवा चलती है, तो मंदिरों में ताकत भी है, तीर्थ स्थलों में भी ताकत है, लोग आज भी ईमानदार हैं। कई ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ लोग ईमानदार हैं, तो जी। आप देख सकते हैं वहां जाके। और ये तो बहुत सारी है सर, अनंत है, हमारा देश भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू यस, फॉर योर थॉट। यस एपी। यस राजशेखर जी। Sorry, request is not getting. Rajshekhar ji, can you hear me? हाँ सर, नमस्ते सर। Okay, Raj. Yes, Rajshekhar ji, believe. So Please. what happened is a few years back I listened to Sadhguru on the same topic. He said, "You the more you remember your Pitrus, the more they will give you the pain and all." Benefits. Yeah, that's true. So later what happened, sir? मेरा मौसी का जो एक बच्ची है, मेरा cousin, she was like 12 years old. She died suddenly, like 1 week. She suffered with some brain issues. Then she died suddenly. So that my mausi, it's like 12, more than 12 years, sir. Still, she is thinking about her daughter only every day. My daughter is Okay. gone, my daughter is gone, my daughter is gone. But she was a bright student. That's why she was like, she thought she will make some big name and all, but she suddenly died. My Mara Mausi jo hai, still she takes her name, sir. So what happened is from the day she died, every 2 years, my Mausi is having some operation with her, in her body. Sometime in the brain, sometime in the kidneys. If I am telling her, like 1,000 times, I told her, sir, stop thinking about her. Leave her, leave her, leave her. Let her go. She will be at peace. If you drag her back, it's like simple, sir. If someone is getting into a bus and you are pulling them back, they will definitely feel awkward, right, sir? Yeah, of It's course. same. True. I told her, but But she's she not will not listening to listen. you.
Sorry. We can't change it. Yeah, she might not listen to you. You're right about it. Yes, sir. Yes, See, sir. people in India they stick to their system, which is there, which is very old. Mm. But this system is highly modified. Yes. It's not the actual system. We are following certain paganic rituals which are not real, which are not related to actual Hinduism. Yes, sir. That is the problem. Yes. So, but people don't understand. You're right about it. Yes, Even sir. your aunt won't listen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I stopped her, sir. Okay, sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. No problem. AP, your request is not getting approved. If you're telling me, I'm trying to approve your request, but somehow I tried to approve it twice, but it's not working. I don't know why it is. Rahul, you're pressed. Rahul ji, please, you can ask the question now. हाँ राहुल जी बोलिए. हाँ, मुझे बस यही सवाल पूछना था कि आपने बोला कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तो ये क्या इज दिस बेस्ड ऑन अ कंडीशन की पितृदान या पिंडदान किसी क्षेत्र में वो करना या गैर क्षेत्र में करने के बाद कि नेचुरली भी वैसे भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपने वो चीज करी हो या ना करी हो? मैं ये बता रहा था कि श्राद्ध जो है वो एक प्रोसेस है. हर साल कई लोग वार्षिक श्राद्ध करते हैं ना. कुछ लोग महालय वृक्ष में दान करते हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन डूइंग श्राद्ध. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू हैव परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स, यू हैव सेंट द पर्सन टू अ सर्टेन लोका. आपने उसको एक रास्ता दिया कि भाई तुम अब हमारी पृथ्वी को छोड़ दो, अब तुम दूसरे पितृलोक में चले जाओ. राइट नाउ दिस इज ओवर. अब उसके बाद उसको बार बार याद करेंगे तो तकलीफ होगा. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बीइंग टोल्ड कि उनको याद नहीं करना चाहिए. राइट. जब महालय पक्ष आता है तो हम दान करते हैं, है ना. यू नो, डूइंग ऑल दोस रिचुअलिस्टिक प्रोसीजर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. वो आपको तकलीफ देगा. जितने लोग आपको रिचुअल्स में डूबे हुए मिलेंगे ना, आप मुझे एक आदमी बता दो जो बहुत ज्यादा रिचुअल्स करता हो या इन्वॉल्व हो और वो सुखी हो लाइफ के अंदर. आप मुझे एक आदमी दिखाओ सर. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक आदमी ऐसा जो बहुत ज्यादा रिचुअल्स को फॉलो करता हो, हर चीज करता हो, तर्पण करता हो. ये मैं आपको नाम नहीं लूंगा. बहुत सारे लोग हैं, गुरु बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट आप उनकी पर्सनल लाइफ देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो बर्बाद है अंदर से, क्योंकि वो ऐसी कर्म कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए. कई बार जब प्रेत होता है ना, जब प्रश्न कुंडली में या किसी इवेंट में पूछा जाता है उससे प्रेत कैसे बने, तो वो बताता है कि मैं बहुत रिचुअल्स करता था इसलिए मुझे प्रेत होने की सजा मिली है. अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा क्यों है. भगवान इस चीज की सजा क्यों देता है कि आप रिचुअल्स कर रहे हो और उसकी सजा मिल रही है? क्योंकि वो गलत है. आप तंत्र मंत्र टोने टोटके और ये सब चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी अधोगति होगी. अब अवनति नहीं होने, मतलब उच्च गति नहीं होगी आपकी. तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर रॉन्ग. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, सिंपलेस्ट प्रोसीजर इज टू ऑफर फूड टू पीपल. आप सिर्फ किसी भी भूखे व्यक्ति को खाना खिला दीजिए, तो बहुत आसान है. बिना याद किए हुए पितरों को. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको याद करते रहें कि भाई मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया. वो करेंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे. बिना किसी मेमोरी के, बिना किसी चीज के अटैचमेंट के अगर आप इस चीज को कर पाते हैं, और तो आप हर साल कर सकते हैं. महालय पक्ष आता है हर साल सितंबर में आएगा, अभी अगस्त सितंबर में कर लीजिए आप, कोई इशू नहीं है. राइट. और एक फॉलो क्वेश्चन था कि अगर जैसे केस किसी फैमिली को ये पितृदोष परेशान कर रहा हो, तो क्या ये सारी फैमिली को कर दे? जैसे मान लीजिए 4 भाई यस हैं, सर, चाचा ताऊ. यस सर, यस तो सर. पितृदोष जो होता ठीक. है वो एक कर्स होता है सर, और कर्स जनरली सभी लोगों को परेशान करता है. नागदोष भी ऐसे ही करता है, पितृदोष भी ऐसे. बहुत सारे जो पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, शत्रु ऋण होता है, पशु पक्षियों का भी ऋण चढ़ जाता है आपके ऊपर अगर उनको मारते हैं आप. वो पूरे परिवार को परेशान करता है, वो एक व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा कभी भी. इसीलिए जब आप वहां जाएंगे पूजा करवाने कहीं पर भी, तो वो जब आपसे वो लेंगे ना, संकल्प लेंगे, तो वो आपके परिवार और गोत्र का पूछेंगे, सबके बारे में पूछेंगे. वो एक व्यक्ति के नाम से नहीं करते वो पूजा कभी भी. तो पूरे कुल में अगर एक बंदा भी पूजा कर दे तो वो पूरे कुल को सफाइज करेगा, राइट? हाँ ऑफकोर्स, ये तो होता ही है. पूजा करते ही पूरे कुल के लिए हैं. वो पूछेंगे आपसे, पूरी डिटेल पूछेंगे कि आपके परिवार में क्या है, नाम वगैरह, गोत्र पूछेंगे, सब करेंगे. उसके हिसाब से पूजा की जाती है. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सर. एपी, आई कैन सी यू मैसेज. कोई तो है जो मुझे आपसे मिलने या कोई डाउट क्लियर करने नहीं देता है. आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू अप्रूव योर रिक्वेस्ट फ्रॉम पास्ट 5 minutes. द बटन, अप्रूव बटन इज नॉट वर्किंग. अब आप सुन पा रहे तो देख लो, ये चीज हो रही है. सर दोबारा कोई क्वेरी रह गई आपकी? Hello. हाँ नारायण जी. You just mentioned about feeding, right? And
And so one of the things I do is, whenever I go to the temples in India or from here, arrange for, food being provided to a lot of people. So that is also fine, right? That is fine. Okay. No problem. And so some of I see what this happening mostly in our community is people just forcing you to come to their house and eat, like just forcing, because they assume that, you provide food to other people, you'll get punya, but forcing is never the way to do it, right? Right. True. I just wanted to confirm that thing because I see. That is not the right way. Yes, because obviously you have an ulterior motive in mind, and when all these things are calculated, your motive is also taken into consideration. So it has to be in a selfless way, right? Right. Okay. True. Thank you. Yes, Karanji. William. Karanji. Hello, Karanji. Can you hear me? Yes. Hi, hi. So actually, I have a question, sir. That while you spoke about, the tarpanas and you spoke about not remembering your ancestors. Actually, my doubt is that when I read the book of Paramahansa Yogananda, he narrated a Mm-hmm. story where his one of his disciple in his ashram was reborn into another place immediately after he died. So वैसे तो सर हमारे साथ भी होता रहेगा ना, because we believe in बर्थ एंड बर्थ एंड Punarjan. या पुनर्जन्म. तो फिर वैसे है तो आई एम श्योर कि if in case my mom and dad has passed away, they might have been through some relationship prior to they born before, and now that they have passed away, they may Yep. definitely might have been born somewhere else. तो Yeah, तो true. वैसे तो सर फिर how does this entire thing make sense in terms of हाँ, वही तो मैं समझा रहा था बीच में आपको, यही तो गड़बड़ है. देखो, ये जो हम बोलते हैं ना पित्र, बेसिकली दे आर, दैट इज अ हायर प्लेन. They have to live over there for a certain time period before taking birth. Now, in certain cases, it never happens. I have seen people, you're right, that immediately the person died, he has taken birth after a few days. This happens. So because they are not being taken to that loka. So that's not pitra, basically. Okay. Pitris is entire different thing. There is a part where they go, there is a loka where they go, and when we offer something, when we do the release them or do donations to some poor people, it reaches them. That's the basic concept. okay, so when we pray and we say that Sadgati for mom and dad, then it works as pitras or it doesn't fall into We that don't know category? we don't know who become what. That is, अच्छा. but that was what I was talking about ना. सभी स्वर्गवासी कैसे हुए मेरे भाई? सबके आगे स्वर्गवासी लिखा होता है. मैं Correct. ये जानना चाहता हूँ, जो लोग इतने बुरे बुरे कर्म करते हैं, इतने सारे नेता हैं, लोगों का मर्डर करते हैं, उनके आगे भी लिखा था स्वर्गवासी. तो भाई तुम स्वर्ग गए कैसे? प्लीज मुझे भी बताओ, ऐसा कौन सा काम किया है? So that is something which we can never discover. If you are suffering from a pitradosha, then be seen in the chart. There are certain combinations for that. In the Prashna also there are certain combinations. So that depends. And we can never find it out unless we do something about it, okay? Absolutely. Absolutely. So just one more thing, I think in Hinduism there was always a culture to do tarpana at home before. You take water, sesame seed, and you to drop it in the You do Dev Tarpan, you do Rishi Tarpan and all that, right? correct. Absolutely. You remember the Rishi, you remember the Guru, and you remember the Pitras, and उसमें पितृ तर्पण भी होता है. correct. So sir, is this a legitimate process that anyone can do, or really need? Would not say that because I have seen people who are doing it. They are not living in a very good condition. So they Okay. are actually, they suffer from something. So it's like they do this with the black sesame seeds and all that. पानी के साथ करते हैं तर्पण. मैंने किया है काफी समय तक. आपको ये भी बता दूं. उसको पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है, घर के हर जगह नहीं किया जाता उसको. तो Correct. वो एक्चुअली कुछ हद तक आपको रिलीफ देता है, क्योंकि वो जल जो है, वो तिल जो है, वो कहीं पहुंच रहा है ना. अब जो गरुड़ पुराण है वो मुझे बॉस्ड अप लगता है. वो ऐसा लगता है कि वो मिक्सड अप है, वो एक्चुअल साइंस नहीं है. तो पुराने जमाने में जब वेद कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं, पितृ सूक्त, तो वो कह रहे हैं कि एंसेस्टर्स को ब्लेसिंग्स मिले, उन्हें गाइडेंस मिले. दे आर टॉकिंग अबाउट देयर वेज, कि वो जब नदी पार कर रहे हैं
इफ यू प्रोवाइड सम रिलीफ टू देम, अगर आप किसी को दान करते हैं मरने के बाद तो वो उनको मिलता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल भाई, सबका डेथ होता है तो सबको दुख होता है, 1 साल तक आप जो भी करते हो वो उनको मिल जाता है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, उसमें तो कोई गलती नहीं है ना, मैं तो वो गलत कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके बाद भी लोग, मैंने देखा 20-20 साल तक लोगों की फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, लोग पितरों की, मरे हुए लोगों की फोटोग्राफ्स को आप मंदिर में रख लेते हो, डू यू थिंक भगवान इज इक्वल टू पितरीज और गोस्ट? दे आर नॉट। ये जो रिचुअलिस्टिक मेथड है, इससे कभी किसी का अगर भला होता है देन आई एम वेरी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको तरीके से करोगे कोई इशू नहीं होगा, आप उसे गलत तरीके से करोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी, सो दैट्स द प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आई बिलोंग टू मैंगलोर, तो यहाँ पे कैसे होता है कि तमिलनाडु में वी वर्शिप दैवास, तो दैवास आर मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। करेक्ट, सो वी बिलीव अ लॉट इन दैट एंड वी डिसाइड दैट इन पास्ट अवे। आपकी आवाज करण इट्स गेटिंग लाइक वो अजीब से आ रही है। ओके, नाउ कैन यू हियर मी सर परफेक्टली? थोड़ी अभी भी थोड़ा अजीब सी रोबोटिक साउंड आ रही है बीच में से। अच्छा कोई बात नहीं, बोलो, आप बोलो क्या बोल रहे थे। देवास की पूजा होती है आप ये बता रहे थे ना तमिलनाडु में? करेक्ट, दैवास, या। सो हाँ, I know उसमें that. कैसा होता है कि sometime when we ask prashna to daivas as well, we invoke them, we invoke daivas and we ask prashna to them. हाँ, I know. And इसमें Yeah. इसमें ऐसा भी होता है कि they tell us that some of the people, ancestors who have passed away, have not got that path to go and they got stuck somewhere and they ask us to definitely perform some pujas in that way. हाँ वो समझ वो, हाँ बिल्कुल ठीक है। Correct. So in that way, sir, हाँ while we say that we have performed something, obviously, हम जब भी, when someone passes away, we do perform all the pujas, but they do get पूजा stuck. हाँ So, sir, this is confusing of, then the puja, does it really work? No, it doesn't work. Sometimes it doesn't work. I tell you why. Because sometimes what happens is like अभी जैसे कोविड था, इतने लोग मरे, इतने लोगों का डेथ हुआ और इवेंचुअल डेथ था, है ना? तो उन लोगों का संस्कार प्रॉपर्ली, इट नेवर हैपेंड एक्चुअली. Most of the dead bodies were not burned properly. Most of the sanskaras were not completed. So even if you do Narayan Bali after that, it is not going to work. So sometimes what happens is these deities, जब वो देवा, जब वो उनमें वो आवेश आता है, तो they can tell you कि ओके बॉस, हालांकि वो भी देवता नहीं होते, मैं आपको बता दूं, वो ऐसा हिमाचल में भी बहुत जगह होता है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। हम उनको देवता नहीं मानते क्योंकि देवता हम भगवान विष्णु को कहते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है, उसके नीचे भी कुछ देवता नहीं है, बाकी सब अदेव हैं। ये बहुत क्लियर है वैदिक टेक्स्ट के बारे में, है ना? तो यहाँ जब हम जिसकी बात करें वो डीटीज हैं जो आपको आके बता देते कि दिस इज द प्रॉब्लम, ओके? तो वहां पर हम उनको, तो हम भी बताते, प्रश्न में हमें पता लगता है कि ओके भाई दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पितरी, तो हम उनको बताते हैं भाई ये रेमेडी करो, तुम्हारा पितर अभी तक गया नहीं है, इट इज स्टिल देयर, है ना? तो वो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, वो होता है। ओके ओके, श्योर सर, थैंक्स, दैट्स ऑल। ओके एपी, आपका रिक्वेस्ट आ गया है, आपका नाम मुझे दिखाई दे रहा है, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हेलो एपी, नाराज होके चले तो नहीं गए? नमस्ते सर। हाँ, now I can see your name now. करण जी ने एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था, मेरा भी वही प्रश्न था कि जब ये जो दैव है कि अदैव है, जैसे सभी लोगों ने कंतारा देखा, उसमें पंजुर्ली के बारे में देखा, यस, तो ये जो है देवता हमारे यहाँ पे पूजे जाते हैं। सो आई हैड एन सेम क्वेश्चन वेदर पंजुर्ली इज अ दैवा और अदैवा। That is one question. They are Adevas. Yeah. They are Adevas, no doubt about yes. it. See, ये सब वे आपको हिमाचल जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे उत्तराखंड वगैरह, वहां भी होता है, ये कॉमन है। वहां पे अलग अलग तरह के देवता होते हैं, लोक देवता होते हैं, भोपा होते हैं, और कुल देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे देवता होते हैं। केरला में एक आई डोंट नो, देयर वाज अ पहलवान हु डाइड इन बिकेम अ देवता लेटर ऑन बिकॉज ही केप्ट ऑन बीइंग वर्शिपिंग, है ना? उनका वर्शिप किया गया रेगुलरली, तो वो देवता बन गए, उनका मूर्ति है वहां पर, उनको लोग देवता समझते हैं। ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ओके? ही डाइड, देन ही बिकेम ए गोस्ट बिकॉज he died a natural death, और फिर उसको देवता बना दिया गया। करेक्ट, दैट इज द सेम थिंग एवरीवेयर। इंडिया में बहुत जगह है, ये यही नहीं होता, मैं आपको हैरानी होगी, ये मैक्सिको में भी होता है, ये दूसरी कंट्रीज में भी होता है। मुझे एक चीज इसमें एक चीज मुझे बुरी लगती है कि लोग बोलते हैं कि इस देव, इस लाइक ये जो है, जो भी होता है या हाँ, आप कोला करिए और इनको मानिए,
दे फोर्स अस टू फॉलो, लाइक उनको फॉलो करो। एंड मैं उसके अगेंस्ट में हूँ एक्चुअली में। एंड ये मुझे हमेशा खटकता रहा है कि हम क्यों फॉलो करें किसी को जबरदस्ती। वो देखो यार, वो एपी, द प्रॉब्लम इज कि ये हमारे कल्चर में एक बसी हुई चीज है ना। हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि नहीं, पितृ का ये है, यू शुडंट डू दिस, शुडंट डू दैट। व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग व्हेन यू आर सच अ गुड पर्सन? करेक्ट। जब भगवान विष्णु स्वयं, जो बहुत ऊंचे हैं सबसे, वो जब आपको बोल रहे हैं कि भाई ये सब पछड़ों में मत पड़ो, आई एम द ओनली डीटीज। आप देखो, मुस्लिम, हम इतनी बुराई करते हैं मुस्लिम लोगों की, आपको पता है दे आर मोनोथिस्ट, दे डोंट वर्शिप ऑल दीज डीटीज एंड ऑल दैट। राइट उनका सिर्फ एक ही देवता है। राइट क्रिश्चियंस का एक ही देवता है। राइट सिखों का एक ही, मतलब वो गुरु ग्रंथ साहिब को सब कुछ समझते हैं। राइट दे आर इंटेलिजेंट देन अस, वो हमसे बेटर है। मेरे को लगता है कि हमने इतने सारी चीजों को देवता बना दिया, एंड द रीजन इज वेरी क्लियर। पता है रीजन क्या है? दीज पीपल पावर्स, उनमें पावर होती है, आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि विदाउट पावर होते हैं, दे कैन डू सर्टेन थिंग्स। करेक्ट ओके, आपका चोरी हो गया कुछ, यू आस्क देम, दे विल टेल यू कहाँ चोरी राइट हुआ, कैसे चोरी हुआ, राइट किस जगह से हुआ, दे विल टेल यू इमीडिएटली। राइट आपका कोई गड़बड़ कर रहा है घर में, दे विल टेल यू कि ये गड़बड़ कर रहा है, दिस इज हैपनिंग। राइट सो दे आर डेफिनेटली, दे आर गिविंग यू रिलीफ, राइट वो आपको फायदा दे रहे हैं। राइट वो जो लालच है ना, ग्रीडीनेस जो हाँ है, उसकी वजह से ये देवता देखता है। राइट। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा मेरा मानना ये है कि भाई तुम भगवान के उपासक हो, भगवान की उपासना करो, इस पकड़ों में मत पड़ो। राइट। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन आप ही के इसमें से, जैसे वाटर बॉडीज के जैसे आपने वाटर बॉडी के बारे में बोला कि वाटर बॉडी के आसपास जो रहते हैं, तो वाटर के बारे में जो था कि नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे होती है। कभी कभी, राइट। तो हमेशा नहीं होती, कभी कभी हम होती। लोग कोस्टल रीजन के हैं, एंड हमारे सामने समुंदर है, घर के सामने ही। जी बिल्कुल सो होता इज दैट है। ओके, अ बैड थिंग? नो इट्स नॉट अ बैड थिंग। सी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एक्टिविटीज दैट हैव हैपेंड। जैसे गुजरात में एक बीच है, ओके उस बीच पे आप शाम को जाओ, आपकी हालत खराब हो जाएगी वहां पर। ओके ठीक है, ओके क्योंकि वहां कुछ बुरी चीजें हुई हैं पहले, है ना। ओके। तो वो जो पानी जो होता है ना, पानी की आपको एक अजीब बात बताता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर इस पानी में कोई चीज डाल दी जिससे मछलियां मर जाएंगी, राइट। ओके आपको हैरानी होगी कि 1000 मील दूर पानी की दूसरे जीवों को ये पता लग जाएगा कि वहां क्या हो रहा है। ओके। दे विल बी अलर्टेड इन अलर्ट मोड। कैसे पता लगता है? क्योंकि वाटर इज ट्रांसमिटिंग समथिंग विच वी कांट सी। वो राइट ट्रांसमिट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं, तभी तो हम चरणामृत पीते हैं, राइट क्योंकि उसमें एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, राइट। राइट तो ये डिपेंड करता है कि वहां क्या हुआ था, इस बात से। अगर हादसा हुआ है वहां पे रेगुलरली, तो उस पानी में वो मेमोरी स्टोर्ड होगी, तब वो नुकसान पहुंचाएगी। ओके अगर कोई हादसा नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा है, ओके। वहां सपोज कोई मंदिर है, तभी तो मंदिरों को बनाया जाता है सर, आपने देखा होगा। राइट। स्थापत्य में ये रूल तो है हाँ कि आश्रम और मंदिर को पानी के किनारे पे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां अच्छी चीजें होती हैं, तो पानी उसको गेन करता है और उससे दूसरी जगह ले जाके फैला देता है। दैट इज वेरी गुड। तो एक अच्छी चीज हो गई ना। राइट पुष्करणी क्यों रखते हैं हम? आपको पता होगा पुष्करणी के बारे में, जो राइट। मंदिरों में, टेम्पल यस। में पॉन्ड्स होते हैं, पुष्करना। तो वो क्यों होता है? बिकॉज वाटर स्टोर्स दैट मेमोरी। दैट इज व्हेन यू टेक अ स्नान इन दैट पुष्करणी एंड गो टू द देवतास टू ऑफर योर प्रेयर्स, you are basically being cleaned up by those positive राइट। energies. Similarly, जब बुरा चीज होता है तो वो भी स्टोर होता है। अब हमें ये पता नहीं है कि आपके बीच पे क्या हुआ है, करेक्ट तो इसलिए कह नहीं सकते कि क्या करेक्ट। चक्कर ठीक है। है सर। जी अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। नागास के बारे में आपने बताया कि नागास पूजे नहीं जाते हैं, लेकिन साउथ में एंटायर ऑफ पूछे जाते हैं। हाँ, वो अदेव कहलाते हैं। सी, नागस को द्रोणाचार्य ने, सॉरी, परशुराम। इन्होंने, परशुराम जी। भगवान ने, उन्होंने तुलुनाडु में ये रूल बनाया था। आपको पता है क्या राइट रूल था? मुझे बताने की भी राइट जरूरत सर। नहीं। तो वहां क्या है कि वो जो नाग हैं, बेसिकली वो आपको ये बता दूं कि वो जानवर नहीं है। लोग सोचते हैं कि नाग का मतलब सरीसृप होता है। नाग का मतलब सरीसृप नहीं होता। नाग का मतलब वो जीव होता है जो फन उठा के बैठ सकता है, और किंग कोबरा ही ऐसा कर सकता है, करेक्ट। जानवर ऐसा नहीं कर पाता, राइट। हर सांप ऐसा नहीं। तो वो हमारे यहाँ 9 ऐसे देवता होते हैं नागों में, है ना। 9 माने जाते हैं वो, अलग अलग, जिनकी श्रेणियां होती हैं, उप श्रेणियां होती हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं। वो आते अदेव में ही है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देवता नहीं होते। हेलो। जी सर सुन रहा हूँ। तो वो अदेव होते हैं, तो पूजा तो करते हैं लोग, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो ओके उससे बचने के लिए लोग पूजा करते हैं। उन्होंने क्या वरदान मांगा परशुराम जी से कि भाई, when they are going to go, we are outside now, आपने पानी में से जगह निकाल लिया, राइट अब ये लोग हमको मारेंगे, हम इनके पैरों के नीचे आएंगे। तो उन्होंने उनको क्या वरदान दिया? इफ the humans commit an error against you, you have the full right, full power to exercise your force against them. Isn't that true? राइट So that is what they do. So we appease them, राइट है ना। राइट
तो उनका छोटा मंदिर बना दिया, वो भी एक तरह से वही उपदेवता हो गए, वो भी वैसे ही हो गए कि हमने उन डीटीज का एक टेम्पल बनाया और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको एक भगवान मान रहे हैं, स्टे ओवर है। हम क्यों करते हैं नाग प्रतिष्ठा, क्यों करते हैं कुके सुब्रमण्य? करेक्ट। नाग प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ? हमने उनकी वापस प्रतिष्ठा कर दी, देवता बना दिया, उनको एक स्थान दे दिया कि ओके बॉस। ऐसे ही लोग पितरों का भी करते हैं ना, गांव में नहीं जी आपने जी देखा जी कि मेरे पितरों का स्थान बना रखा है, खेत में लोग पितरों का स्थान बना देते हैं जी फील्ड्स के जी अंदर। जी जी। दिस इज व्हाट दिस इज द सेम प्रोसेस। तो वो इस तरह की चीज है, देवता तो हैं लेकिन वो पूर्ण देवता वो भी नहीं है। ओके। हाँ, जब हम आदिशेष की बात करते हैं, जब हम भगवान वासुकी की बात करते हैं, तो वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं। उसका कारण है क्योंकि उन दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है, ये तो आप भी आपको भी पता जी बिल्कुल है ना। सबको। तो वहां हम उन्हें देवता अब जब हम पद्मनाभ स्वामी जाते हैं तो हमें भगवान शेष की वहां आवाज सुनाई देती है दीवारों के अंदर, अगर आपने कभी सुना हो तो कहते हैं लोग वहां पे आवाजें आती हैं। तो वो तो देवता ही है, वो तो 100% देवता है ना, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। जी सर, यही मेरा एक 3 डाउट थे जो आपने क्लियर कर दिए सर। अभी किसी ने एक मैसेज भी किया था खाटू श्याम जी के बारे में, लाइक इनको जी इनको जी महाभारत के पीरियड में ही इनका वध किया गया। तो राइट। अब वध किया गया है तो वो पितरों में ही, मतलब ही हैज लॉस्ट हिज बॉडी। सो व्हाट इज योर हम्म। ओपिनियन ऑन दैट, लाइक पूजे जाने चाहिए बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉडी? सर एक्चुअली क्या है कि मैंने एक बड़ी अजीब चीज ऑब्जर्व करी हाँ है खाटू श्याम जी के बारे में, हाँ। है ना। क्योंकि मैं तो वहीं रहता हूँ, तो आपको मालूम ही है, जी ये तो आपको मालूम जी है कि मैं वहीं रहता हूँ, जी जी है ना। जी। तो व्हाट आई हैव सीन इज, जैसे जो लोग गलत काम कर रहे हैं लाइफ, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, है ना, हम्म। चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, वेन एवर दे गो ओवर देयर उनको एकदम से फायदा होता है। ये तो मैंने देखा है कि उनको फायदा होता हाँ है ना। हाँ। क्योंकि खाटू श्याम जी बेसिकली क्या था, उनको भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम रहोगे, ये बोला था ना जी उनको। बिल्कुल। तो वो इसीलिए तो इसलिए कर रहे हैं। हम्म। ऐसे ही अश्वत्थामा भी हैं, जी। ऐसे ही गुरुदत्ता भी हैं। चिरंजीवी है। तो ये सब शक्तियां हैं। हाँ, ये चिरंजीवी, ये पावरफुल हैं, ऐसा नहीं है कि बिना पावर के हैं, हम्म। तो है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल ही प्योर हार्टेड और वहां जाए और उसको कोई फायदा हो। कई लोगों को बहुत नुकसान होता है वहां जाने के बाद। मैंने ये भी देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग पूरा के पूरा परिवार वहां जाते जाते नष्ट हो गया, डेथ हो गई एक्सीडेंट में, सबके सब मारे हाँ, गए। रिसेंटली तो रिसेंटली न्यूज में ऐसा भी है। नहीं है कि, हाँ होता है, ये बहुत कॉमन हाँ। चीज है। तो अब उनको देवता माने या नहीं माने, इस क्वेश्चन पे तो मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूँ कि भगवान विष्णु से ऊपर कुछ नहीं है, राम जी से ऊपर कुछ नहीं है। अपन किसी को नहीं मानते, मैं नहीं मानता, मतलब लोग मानते हैं, ठीक है, हजारों चीजें करते हैं। राइट मैं कहता हूँ कि श्रद्धा सिर्फ एक में ही रखो, राइट। एक राम, बाकी सब बेकार, सब कुछ किसी की जी वैल्यू नहीं है भाई। जी मैं सर। देवी की उपासना जरूर करता हूँ, लेकिन वो त्रिपुरा सुंदरी है, वो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। जी बिल्कुल। तो वो ऐसी देवी नहीं है जो किसी के अंदर आ जाती है या कुछ कर देती है, ऐसा कुछ नहीं होता है देवी के बारे में। ललिता त्रिपुरा किसी के अंदर नहीं आती है, दिस इज समथिंग विच पीपल डोंट जी अंडरस्टैंड। सो वो शक्ति है, उनकी उपासना तो वो तो महान शक्ति, तो इसलिए वो उपासना कर सकते हो आप। ये सब चीजें में पचड़े में पड़ने का क्या फायदा जी सर। बिल्कुल। वो जनरली आपको टाइमली कुछ रिजल्ट दे देंगे, दे विल गिव यू सम बेनिफिट्स, ऑब्वियसली दे विल गिव यू, दे हैव दैट पावर। ओके। बट वो क्या लॉन्ग रन में आपके पास रहेगी, जी क्या आपको वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, क्या आप उसके ऑब्लिगेशन में नहीं जाओगे? जी ये मेजर क्वेश्चन तो ये है कि क्या आप ऑब्लाइज नहीं हो जाओगे ऐसे व्यक्ति के जब आप उसकी शरण में जाओगे? जी सोचो, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज द शत प्रॉब्लम, प्रतिशत। दैट इज द थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग माई डाउट। प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है। हाँ अंकुर जी बोलिए, सॉरी। कोई बात नहीं सर, प्रणाम सर। आपने बात की क्रिस्टल्स की, तो आपने हाँ, बोला कि जेमस्टोन्स में बहुत सारी पावर, एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो बिल्कुल। आइडियली हमारे पास पहले घर में बहुत सारे जेमस्टोन्स थे जो कि हमने पानी में बहा दिए। बट क्यों? कुछ कुछ जेम्स सर, वो क्योंकि उनको जैसे जैसे हम बहुत लोग बोलते हैं ना कि अगर आपने घर में कोई आइडल रखा है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उसको प्रॉपरली क्लेंस नहीं करते, तो जैसे आपने बोला कि टूटी मूर्ति में भी एनर्जीज आ जाती है, तो हमें ये लगता है कि हम उसको तो उसको वैसे रख देते ना, शो पीस बना देते, उसकी पूजा नहीं करते, बहुत सिंपल तरीका था। अच्छा। तो सर मैं आपसे ये खाने के पूछना चाह बाद, रहा था, हाँ, अच्छा। मतलब ठीक है वो मुझे गाइडेंस अब आपसे मिल रही है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर आपके पास कोई जेमस्टोन्स है, अगर आप उनको रेगुलरली क्लीन नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने बोला था कि उनमें एनर्जीज होती है, तो हमें कुछ करना चाहिए जिससे वो एनर्जीज, जो पास्ट मेमोरीज है, वो क्लियर हो जाए। सो व्हाट एग्जैक्टली हम्म। शुड वी डू, ताकि आप कुछ भी लेकर आ रहे हैं, बहुत लोग चक्रा स्टोन्स ले आते हैं, मेरे पास चक्रा स्टोन्स है घर में, तो व्हाट शुड आई बी डूइंग टू इंश्योर कि वो मुझे किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर रहा? अब यार वो तो अपन कुछ नहीं कह सकते। देखो मैं जहाँ बैठता हूँ ना, इस टेबल पे जहाँ मैं अभी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, इस हाँ पे जी। करीबन
लाखों रुपए के स्टोन्स हैं नीचे, ठीक है। मैं रोज यहीं बैठता हूँ, रोज यहीं से बात करता हूँ, और ये मेरी बहुत लंबी कलेक्शन है। मुझे शौक है जेमस्टोन्स का, आपको ये भी बता दूं। मैं हमेशा बेचता हूं, कुछ स्टोन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं बेचता उनको, है ना। अब चीज ये है कि हम यहाँ पर बहुत सालों से पूजा कर रहे हैं, मुझे तो 28 साल हो गए ये काम करते हुए। यहाँ पे इतने सारे अनुष्ठान हुए हैं इसी घर में, इसी जगह पर। यहाँ रोज पूजा होती है रेगुलरली, एवरी डे। तो ऑब्वियस है कि ये स्टोन्स गेन कर रहे हैं। अब किसी स्टोन को कैसे हम पॉजिटिव करें, इसका कोई तरीका नहीं। लोग नमक के पानी में डाल देते हैं, लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, बट मुझे लगता है कि कोई भी स्टोन नेगेटिव पावर अपने अंदर रख सकता है, ये बहुत आसान है। और वो हो सकता है हमें नुकसान भी पहुंचा दे, क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं जो अपने स्टोन बोलते हैं कि सर इसको लेने के बाद हमें बहुत नुकसान हुआ, और ये बात सही है क्योंकि ऐसा होता है। तो अब उसको तो हम एक दिन में पॉजिटिव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं। सपोज एनर्जी का रेट है 100x, और आप एनर्जी उसके अगेंस्ट में लगा रहे हैं 20x, तो आप भी जानते हैं कि उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो हमें एनर्जी के बारे में नहीं मालूम कि उसके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी, ये नहीं मालूम। इसलिए जेमस्टोन्स बहुत खतरनाक होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोग सोचते हैं जेमस्टोन्स खेल है, लेकिन क्योंकि मैं तो जेम कैपिटल में रहता हूँ, तो मैंने देखा है लोगों को कैसे बर्बाद होते हैं जेम लेने के बाद। इनफैक्ट वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि जेम्स ही उनको बर्बाद कर रहे हैं, कि वो रख के बैठे हैं, और वो बर्बाद होते रहते हैं सिर्फ एक जेम की वजह से जो उनके घर में पड़ा रहता है। तो इतना नेगेटिव एनर्जी इनमें होता है, एंड देयर इज नो वे टू फाइंड इट आउट। उसका कोई तरीका नहीं है। बस ये हो सकता है कि आप रोज भगवान का नाम लें तो शायद वो पॉजिटिव हो जाए, ये कहा जा सकता है। नो श्योरिटी अबाउट इट। हाँ, मतलब एक्चुअली आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे बस यही पूछना चाह रहा था जी कि जी। कि एज एन नॉर्मल लेमैन, राइट, जिसको जो नहीं जो जानता। लोग साधना नहीं कर रहे, बिकॉज हाफ ऑफ द ऑडियंस हियर दैट यू हैव, वो लोग शायद नहीं उतनी साधना कर रहे होंगे जितनी आपके घर में हो रही है, राइट। तो उनको कुछ 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 टिप्स, आप कुछ स्टेप्स बताना चाहेंगे दैट दे कैन मिनिमलिस्टिकली सर, डू टू हाँ, अवॉइड, मैं क्योंकि लोगों के कहूंगा पास कि तो रोज भगवान, हाँ, डायमंड होते नहीं, ज्वेलरी भी इतना होती टाइम है, ही नहीं वो होता, भी बिल्कुल जेम्स। सही बात है। जैसे भगवान का नाम लो यार, राम जी का नाम लो रोज रेगुलरली, उनको धो दो, उनको गंदा मत करो, है ना। और भगवान का नाम लो, दैट इज द ओनली थिंग विच यू कैन। तो क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी क्या कर पाएगा, सोच के देखो। मेरा एग्री तो एग्री। मानना है सबसे बढ़िया तरीका है कि भगवान राम का नाम लिया जाए। राम जाप के अलावा कोई और चीज जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जेमस्टोन्स ओके। वैसे आपको बता दूं चल के आते हैं इंसान के पास, है ना। और उसका कुछ प्रयोजन होता है। अगर वो स्पेसिफिकली चल के आएंगे आपके पास, तो उनका कोई प्रयोजन होगा। मेरे पास 2-3 चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली आने वाले टाइम में किसी मंदिर में लगेंगी, मेरे किसी काम की नहीं है। वो मेरे पास है ही इसलिए कि वो कहीं और जाने वाली हैं। तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं ये जानता हूँ कि वो मेरे पास क्यों है। तीनों आप एक बड़े गेट रेयर कीपर पीस। की तरह अभी उसको संजो के रख रहे हैं, एंड देन बस वो व्हेन द रखा हुआ है, टाइम। मेरी मेरी नहीं है, वो है तो भगवान की अमानत, तो वो भगवान के पास ही जाएगी एंड में। तो बस वो पड़ी है। ऐसे कई चीजें हैं सर। ओके ओके, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन सर। जी। यस हरीश जी बोलिए। हरीश जी, आवाज आ रही है आपको? हरीश जी तो गायब ही हो गए। राहुल बट्टा जी, राहुल जी, हेलो राहुल जी। इंदिवर, इंदिवर वीबी, अभी। हेलो। Sir, if people are not responding, can I ask another question in the interview? दीपिका रायजादा, लेट्स आस्क देम यार, क्योंकि वो लोग भी वेट करे ना बहुत टाइम से। Sure. दीपिका, कैन यू यस हियर सर, मी? आई कैन हियर। नमस्ते सर। हाँ। सर, जैसे अभी आप किसी को बता रहे थे कि जैसे हम लोग मेटल की मूर्ति या फिर पत्थर की मूर्ति हम लोग ले लेते हैं, और उसमें भी एनर्जी स्टोर होती रहती है। और जैसे कि आप बहुत सारी लेडीज को हम लोग आजकल देखते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, लड्डू गोपाल मार्केट से जाके खरीदती हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कुछ बता सकते हैं? बहुत तकलीफ बोलेगी होगी अगर मैं सच बोलूंगा, तो सर, आपको पता है। सर प्लीज मुझे जानना है, बिकॉज माय मदर इज ऑल्सो डूइंग द सेम। एंड जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं तो उनको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, तो आई गेस शी इज ऑल्सो फेसिंग द सेम। तो और आप भी फेस करोगे, आप क्योंकि संतान हो, हम्म, हम्म, पता है। हम्म, हम्म, सबसे पहले
कई बार मैंने ये देखा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वालों की संतान नहीं होती, पुरुष संतान नहीं होती, मेल संतान नहीं होती उनकी, जबकि टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए पर ऐसा होता है। कई बार मेल संतान हो जाती है तो वो सफर करती रहती है। मैंने एक ऐसी फैमिली भी देखी है जिन्होंने शाला लेके आए वो घर में, तो जेल में थे, अब डेथ हो गई उनकी। जेल में क्यों थे? क्योंकि वो भगवान की मूर्तियां बेचते थे। और तो जब मैं उनके घर गया था तो उन्होंने शालाग्राम जी रखे हुए थे घर में, लड्डू गोपाल जी की तरह इक्वलेंट होते हैं, पावर होती है शालाग्राम जी। हाँ, तो और केवल कुछ समय सेवा नहीं की थी उन्होंने, है ना? तो इतनी सर, सी चीज भारी पड़ जाती my mother is actually doing it from like past 2-3 years. जैसे सब लोग आजकल तो ट्रेंड ही हो गया है कि मार्केट से लेकर आना, उनको सजाना, उनका सेवा है। जैसे एक आप फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं वैसे रखना। तो सर इसके बारे में आप कुछ गाइड कर सकते हैं कि हाउ मतलब ये तो इफेक्टिव। बोल रहा हूँ इफेक्टिव नहीं होगा, वो नुकसान देगा आपको बहुत ज्यादा। मेरे पास लड्डू गोपाल जी आते रहते हैं, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ उनको, बहुत लोगों ने गिफ्ट किए मुझे। मैं नहीं रखता उनको घर में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी कोई साधारण चीज नहीं है, भगवान है। और भगवान भी छोटे मोटे नहीं है। अगर आप बिल्कुल। उन्हें घर में रखोगे और आपसे एक भी गलती हो गई, एक भी, हम्म तो आप जन कई वर्षों तक नर्क में होता रहेगा, पता है आपको? अगर आपने बाएं हाथ से लड्डू गोपाल जी को उठा लिया गलती से, हम्म आपने उनको भोजन नहीं कराया, आप उनको जब कहीं बाहर जा रहे हो लेके नहीं गए, ये सारे रिचुअल्स आप फॉलो नहीं कर पाओगे। और भी कई चीजें हैं, हजारों चीजें हैं जो घर के अंदर सूतक पातक दोष लगते हैं इतने सारे। जब ये प्रेत आपके घर में 13 दिन तक रहता है, सूतक नाम का, तब आप क्या करोगे? भगवान को कहोगे कि घर से बाहर जाओ? भोग नहीं लगा पाओगे उनको, कैसे करोगे? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स डिसाइड। ये जो पागलपन है ना, इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये भगवान की भक्ति नहीं है, ठीक है? तो इससे किसी को भी कभी भी लाभ नहीं होने वाला है। ये सच्चाई है, मैं आपको बता सकता हूँ। गौड़ मत में जो भगवान कृष्ण के उपासक हैं, वो कभी भी मूर्तियों को घर में नहीं लेके जाते। लड्डू गोपाल तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए अब आप खुद सोचो कि जो लोग इस सिस्टम को लेके आए वो खुद ये नहीं करते, तो आप क्यों कर रहे हो? अगर आपको इतना ही सेवा करने का शौक है, मंदिर में जाओ ना, भगवान थोड़ी ना है वहाँ पे लड्डू गोपाल जी की, बहुत सारी है। हमारे ठाकुर जी के मंदिर में, गोविंद जी के मंदिर में बहुत सारे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, आप कभी भी सेवा कर सकते हैं। Why do you want to keep it inside the house when you can't do anything? See, आप फरारी ले आओगे, फरारी को मेंटेन नहीं करोगे ना, तो वो फरारी खराब हो जाएगी। होती है ना, एक महंगी हाँ चीज, जी। बड़ी चीज को आप भगवान जैसे, और वो भी साधारण भगवान नहीं है भाई, वो तो वो है जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, सब कुछ उनको वही करने वाले, और फिर आप उसको लाके उनका अपमान कर रहे हो। ये कहाँ का नियम है? आप मुझे समझाओ, कैसा नियम है ये? और किसको लाभ हुआ है ये समझाओ मुझे। आज तक मैंने तो हमेशा इंसान को रोते हुए देखा है। जितने लड्डू गोपाल जी के उपासक देखे हैं ना, जो घर में उनकी सेवा करते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर भुगतते हैं। और ऐसी एक नहीं, मैं बहुत सारी औरतें बता सकता हूँ आपको, बहुत। और उनके लिए सिर्फ एक ही नियम है कि साहब लड्डू गोपाल जी से माफी मांगो, उन्हें मंदिर में देके आओ, उनसे कहो कि भगवान हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। क्योंकि आप मेंटेन तो कर नहीं सकते। सर अगर वो तीनों टाइम का भोग लगा रहे हैं खुद खाने से पहले मैडम वो उनको। छोड़िए, तीनों टाइप का भोग आप लगा देंगे, मैंने मान लिया। सूतक हम्म पातक हम्म, क्या करेंगे मुझे ये बताइए? घर में बिल्कुल स्त्रियां होती बिल्कुल हैं, बच्चे बिल्कुल। होते हैं, उन सबके नियम हम्म, फॉलो कर लेंगे आप? घर में आप 100 गज के घर में आप टॉयलेट भी रखेंगे, आप मंदिर भी जी रखेंगे, कहाँ जी से जी। नियम फॉलो होंगे? मुझे समझाइए आप। देखिए, पुराने जमाने में 1000 गज का मकान होता था, एक कोने में आपने भगवान का मंदिर बनाया, वहां नियम कायदे फॉलो हो सकते थे। आप उस कोने में जाके बैठते थे, भगवान को याद करते थे। पुराने जमाने में आपको बता दूं, घर में मंदिर नहीं होता था, देवालय वेद लगता है मंदिर घर में बनाने पर, ठीक है? मंदिर आजकल लोग, जो फिल्मी स्टाइल चल रहा है ना हमारे देश में, कॉमर्शियलाइजेशन मंदिर बनाने का, हम्म उसकी वजह से लोग घर में मंदिर बनाते हैं। 64 वेद होते हैं वास्तु में, उसमें से एक वेद होता है देवालय वेद। घर में मंदिर नहीं बनाया जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं है इस बात को। अब पुराने जमाने में इष्ट देव, जो कुल देवता होते थे, वो और गणेश जी, इन दोनों के अलावा कोई देवता घर में नहीं होता था, सारे देवता बाहर होते थे, या फिर घर बड़ा होता था और उन्हें कोने में रखा जाता था। आप आमेर के किले में जाइए, शिला देवी जो है वो बाहर है आमेर के किले से। वो राजा हम्म। थे, उन्होंने जब महल बनाया तो उनको पता था कि भैया भगवान बाहर रहते हैं, घर के अंदर नहीं रहते। सी दीज पीपल हु वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ आवर कंट्री, वो लोग जब इस नियम को फॉलो कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो उल्टे नियम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई डोंट नो बट ये एक ट्रेंड ही हो गया है आजकल। मतलब ट्रेंड तो हो अगर गया, मैं मानता हूं ट्रेंड हो गया, लेकिन उस ट्रेंड का खामियाजा आप लोग भुगतोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये आपके कर्मों की सजा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये उनके कर्म का ही फल है। आप ये मत समझना कि ये बिना कर्म गति से हो रहा है। जो भी दुनिया में होता है वो कर्म की वजह से होता है। आप कर्म की गति खराब होगी आपकी, तो आप ऐसा करेंगे, देवालय वेद लगेगा, देवदोष लगेगा, द्वितीय भाव खराब हो जाएगा आपका, प्रश्न में साफ दिखाई देता है वो चीज।
और आप सफर करेंगे, आपकी संतान सफर करेगी, वो कर्ज की तरह ट्रैवल करेगा। आपको पता है भगवान का कर्ज कितना खतरनाक होता है। जिस आदमी की मैं बात कर रहा था, उसने शालिग्राम राग के घर के अंदर उनकी सेवा करना रुक गई कुछ समय तक, वो बाहर चले गए, गलती से बाहर गए थे, उस समय सेवा रुक गई। सेवा रुकने से क्या हुआ मालूम है आपको? वो जेल चले गए, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, उनकी डॉटर जो 38 ईयर्स की थी उसकी डेथ हो गई। इतना बुरा हुआ सिर्फ एक भगवान का अपमान करने पर, या उनकी उनकी अवज्ञा करने पर कितनी बड़ी सजा मिलती है इंसान को। भगवान की वजह से सजा नहीं मिलती, सजा तो हमें अपने कर्मों की मिलती है, लेकिन भगवान उसका एक वो बन जाते हैं, मीडियम बन जाते हैं। हमसे गलती हो जाती है भगवान को लाके, मेरे को शालाग्राम मिले, मैंने किसी और को दे दिया। मैं अपने पास इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं रखता हूँ। मैं जिस चीज को आप भाई मेरी नहीं है औकात भगवान को रखने की अपने पास, तो मैं नहीं रखता। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्यों जबरदस्ती भगवान को पकड़ के बैठे हो? भगवान को पकड़ना है, मंदिर बने ना, उसके लिए जाओ मंदिर में, रोज सेवा करो भगवान की, सबसे बढ़िया सेवा है। उन लोगों की सेवा करो जो बेचारे परेशानी में है, वो भगवान की सेवा होती है सबसे बड़ी। भगवान खुद कहते हैं भाई उसकी सेवा करो, मैं तो दीन में बसता हूँ। तो दीन की सेवा करोगे तो तभी तो भगवान की सेवा होगी। लड्डू बिल्कुल गोपाल सर, जी रखने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे मंदिर में हम लोग भगवान की फोटोज भी रखते हैं, तो क्या हम मूर्ति भगवान की रख सकते हैं अगर हम डेली अगर हम नॉर्मल पूजा कर रहे हैं तो? नुकसान पहुंचेगा उसमें, आपको पता नुकसान? नहीं लगेगा। मूर्ति का विन्यास क्रम होता है, आपको पता है स्थापत्य पे रूल्स है मूर्ति के। आजकल मूर्तियां वैसे बनती नहीं है, जो आजकल आप मूर्तियां बाजार से लाते हो ना, उनका जी। जो उसको हम पर्टिकुलर एक सिस्टम से बनती है वो, है ना, ताल कहते हैं उसको, है ना। नव ताल होता है, गणेश जी के पंच ताल होते हैं, हर किसी के अलग अलग ताल की मूर्ति होती है। उस ताल के बिना जब आप मूर्ति बनाते हो तो उस मूर्ति में अदेव यानी नेगेटिव चीजें आके बस जाती हैं, या कोई नेगेटिव चीज बस जाएगी, तो वो तो आपका भला होने नहीं वाला कभी भी, वो तो भूल जाओ। जो नियम ही नहीं है तो भला कैसे होगा, सोच के देखो। और उसका बड़ा सिंपल एग्जांपल है ना, मेरा मानना है, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। आपने भगवान की पूजा करी, मैंने मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ सब लोग भगवान के पुजारी हो, सब कुछ अच्छा काम कर रहे हो। मुझे ये बात बताओ कि आप खुश हो कि नहीं लाइफ से? सचमुच में अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ कि आप खुश हो। सर बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, हाँ। बहुत सारे लाइफ के एरियाज ऐसे हैं कि हम लोग पूजा भी करते हैं, बट देन फिर हमें लगता है कि बहुत अंदर सारी से अभी प्रॉब्लम्स भी हैं। अशांति है कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना ये है कि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो सबसे पहला साइन पैसा नहीं होता। सबसे जी। पहला जो मंत्र महोदधि है ना, उसको खोल के देखिए, पहले पृष्ठ पे क्या लिखा है, उसके अंदर दूसरे तीसरे पृष्ठ पे लिखा है कि भगवान के होने का पहला साइन क्या है? इट्स हैप्पीनेस, खुशी हैप्पीनेस। होना। जी। पैसा नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब विष्ठा के समान है, आपको पता है। भगवान की उपासना में इनका स्थान विष्ठा के समान कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि आप जो मंशा रखते हैं वो तुरंत पूरी हो जाए, आपके सोचने भर से वो चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाए और आप खुश रह पाए, ये भगवान के होने का साइन है। अगर ये दो साइन मौजूद नहीं है तो आपका रास्ता गलत है। तो इसलिए कोई भी रास्ता आप अपना रहे हो, इट हार्डली मैटर्स। अगर ये दो चीजें नहीं हो रही तो रास्ता ही गलत है। जी। इट इज नॉट बिल्कुल। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? यस यस, टोटली। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके। यस मून, Rolf golf ball. I don't know. This quest. Can you hear me? Hello. हेलो, Yes. नमस्ते पंडित जी, मैं मनु वर्मा हूँ। Okay. मेरा एक डाउट था कि जिनके परिवार में कई सारे पेट्स होते हैं और वो जैसे पेट्स अगर जब चल बसते या फिर कई शिशु शिशु अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो इनमें तो शिशु, हाँ बच्चे, क्या बोला आपने? छोटे बच्चे होते हैं ना जो लेस देन 8 ईयर्स के छोटे छोटे शिशु, हम्म। और पेट्स जैसे इनके पास इतनी ग्रेट रिपोजिटरीज नहीं होती है मेमोरीज की इन सब का, तो इनके इनके देहांत के ऊपर क्या हमारे पास सिमिलर इफेक्ट पड़ता है जैसे बाकी ग्रोन अप को नहीं नहीं, पड़ता है? उसका रीजन है ना, उसका रीजन है, उनमें इमोशंस नहीं होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, तभी तो उनका वो पितर नहीं बनते, वो किसी योनि में नहीं जाते, वो इस तरह की योनिया में नहीं जाते हमारी तरह। उनका पोर्टल्स अलग होते हैं, वो अलग ही जगह रहते हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ऐसे। छोटे बच्चों का पड़ता है। अगर आप इंसानी बच्चों की बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उनका तो असर पड़ेगा अगर आप उन्हें याद करते रहेंगे। तो मैं तो बता ही रहा था इतनी देर से ये बात। हाँ नहीं, ऐसे नॉट जस्ट लाइक रिमेम्बरिंग देम, लेट्स से दे हैव जस्ट गॉन अवे
इलाबरेट रिचुअल्स जैसे हम बड़े लोगों के लिए करते हैं, छोटे बच्चों के लिए किसी वजह से नहीं हुआ, तो वो रात इक्वल नहीं, तब रहेगा। वो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अगर वो इंसान था, इंसान का बच्चा अगर वो है, इसकी आप बात करें, डेफिनेटली एंड तब तो हो, तब तो सारे रिचुअल्स होंगे। और जो पेट्स होते हैं तो उनका क्या, जैसे मेरे कई लोगों को देखा है वो सीधे साधे बस उनको कहीं जाके दफना देते हैं। पेट्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, पेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बस मैं ये पेट से कोई समझना प्रॉब्लम नहीं होती। ये समझना था। थैंक यू। ओके ओके, यस सौरभ जी बोलिए। सौरभ जी, ओके। इसेंट्रिक हेलो। मॉन्क, हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, सौरभ सौरभ जी। बोल रहा हूँ। प्रणाम पंडित जी। हाँ हाँ सौरभ बोलिए। हाँ, तो ये था कि जब डेथ होती है किसी की, तो अब हमें एक साइन मिलता है कि मतलब शरीर से किस साइड से, किस मतलब आंखों से या मुंह से, जिस चीज हाँ से निकलेगी, आत्मा बाहर बाहर निकलती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे हम मतलब एक आइडिया आ जाता है कि उनका, गति निकलती है, हाँ राइट, उनका मतलब सदगति हुई है या कैसे हुई है। तो मतलब अभी एक 2-3 दिन पहले हमारे सोसाइटी में एक जन की ये हो गई, मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके समय मतलब यूरिन हो गई, मतलब मृत्यु होते समय। तो मतलब ये अधोगति रही होगी ना, राइट? अधोगति है, बिल्कुल। तो क्या आप उस पे मतलब जिस हिसाब से आत्मा बाहर निकलती है शरीर से, उस पे कुछ बोल पाएंगे, मतलब गाइड करेंगे? तो जनरली जब अधोगति होती है, इट्स वेरी सिंपल, अधोगति के बाद आदमी अधोगति पे ही जाता है। वो हाँ कभी उसकी उधर्व गति तो नहीं होगी। उधर्व गति के लिए प्राण जो है शरीर के बिल्कुल सर का जो बिल्कुल ऊपरी भाग होता है वहां से निकलते हैं। मतलब पंडित मैंने जी, अपनी आंखों से देखा माफ निकलते हुए। करना, जी किसी जी, और का एक स्पीकर चालू है, माइक शायद। ओके, आई डोंट नो, आई कांट हियर, आवाज मुझे तो थोड़ा सा सुनाई नहीं दे। आवाज थोड़ा सा अजीब आ रहा है, या मेरे मेरी से? आवाज आपको आ रही है? हाँ, थोड़ी सी अटक मेरी के आ आवाज रही है। आपकी आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट मुझे नहीं मालूम स्पीकर किसका ऑन है, क्योंकि मैं ऑफ नहीं कर सकता हूँ। सो द पर्सन शुड हिमसेल्फ डू दैट, क्योंकि यहाँ से तो ऑफ करने का ऑप्शन ही नहीं है ना। तो आप बोलिए, आप ओके क्या ओके बोलते हैं? ओके। देखिए इसका हाँ हाँ, जनरली तो हम ये जानते ही हैं कि अधोगति है तो अधोगति, इट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद भी होता है सर, वो आपको पता है ना, एक और रिचुअल होता है जिसमें रात को बाद में देखते हैं, रात को रख के चले जाते हैं, फिर सुबह देखते हैं कि उसमें कैसे निशान बने थे, उससे अंदाजा लगाते हैं कि व्यक्ति कहाँ गया होगा, उसकी गति क्या हुई होगी, पता है आपको? ऐसा भी एक रिचुअल होता है। ओके। थोड़ा सा आवाज आपको थोड़ा आवाज आ रही है? आवाज अब आ रही नहीं, है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, पता मुझे नहीं एक्चुअली क्यों, साफ सुनाई थोड़ा दे रही है, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, आप दोबारा सुन सकते हैं। वैसे मेरी आवाज क्लियर आ रही है, क्योंकि मुझे पता लग रहा है मेरी आवाज हो रही है, क्योंकि इसमें माइक में वो मैं एक बार फिर से ज्वाइन कर देता हूँ पंडित जी, कोई क्योंकि दिक्कत हाँ थोड़ा सा कोई आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक। हम्म। हाँ विद्या जी, आप बोलिए तब तक, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? विद्या देसवाल, विदु देसवाल। हेलो। हेलो, हाँ विद्या जी हाँ, बोलिए। नमस्कार सर। अच्छा नमस्ते, सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट चार्ज हो जाए। अभी क्लियर है सर? थोड़ा बीच में एक अजीब सा साउंड आ रहा है। कोई मैं बात नहीं, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे ना 2-3 क्वेश्चन है। एक तो आपने बोला, एक ही पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग हैं अच्छा मैं एक्चुअली पूछ आपके लूँ। नीचे भी। अच्छा, एक मैंने ना जी एक्चुअली मैसेज में भी डाला, अगर आप चाहो तो वहाँ आंसर कर दो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, विल डू दैट। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है ऐसा जो अभी तक आंसर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, आप वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने स्पेसिफाई करके लिखा, बस एक क्वेश्चन वो मैंने बहुत स्पेसिफिकली लिख नहीं पाई। उसका बस ये था कि जैसे पेरेंट्स के लिए कई लोग जैसे उसमें स्थान बना देते खेत में, तो क्या वो ठीक है कि नहीं है? वो अगर वो गलत होता है।
वो गलत होता। जैसे मेरे फादर का बनाया, मेरे फादर की लास्ट विश थी, ठीक है, कि मेरे खेत में, उनके गांव में ही मेरे खेत में मेरी थोड़ी सी राख डाला और वहाँ पे मेरा स्थान बना देना। तो फिर मैंने बताया था ना ये चीज, मैंने अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, हाँ आपने ठीक है, सुना नहीं वही मैं शायद। सुना था मैंने, हाँ, वही वो तो फिर गलत मैं होता है अब ये एक्चुअली। बता रही हूँ, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम? उसको ठीक नहीं कर सकते एक्चुअली। क्या उसमें सिर्फ नारायण बलि और नाग बलि जो होता है ना लास्ट में, जो आपका जो उपचार होता है वही करना पड़ेगा आपको क्षेत्र पर जाकर। आपके एक्चुअली मेल मेंबर्स करते हैं, फीमेल मेंबर्स तो जा भी नहीं सकते। तो आपके जो घर के मेल मेंबर्स हैं वो जाएंगे, जो भी ब्लड रिलेशंस में हैं वो जाएंगे और उनको वहां पर छोड़ करके आएंगे फाइनली। और जब छोड़ आएंगे उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, उस स्थान को हटा दिया जाएगा, सब चीजें खत्म हो जाएंगी वहां से। तो अच्छा, उनको ये जो वहाँ फोटो रखी उसको ले जाके कहीं छोड़ना है उन्होंने? हाँ बिल्कुल, बकायदा वो जो गया क्षेत्र होगा वहां जाएंगे आप, वो पूजा वगैरह जो भी अच्छा, होती है, जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे होंगे, फिर वो फाइनली वहीं छोड़ दिया जाएगा उनको, ऐसा होता है। ठीक ठीक है सर, बस ये तो मेन था, बाकी आप मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए। हाँ मैं, चलो मैं करता हूँ। थैंक ओके। यू। हाँ जी, बीना गोविंद सिंह जी बोलिए। में थोड़ा क्वेश्चन मेरे को डाउट था। जैसे अभी अभी पता चल रहा है कि हम लोग बहुत कुछ जो करते हैं बहुत गलत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे मनमास का जो महीना तो आता बहुत है कुछ। सर, उसमें लोग जो अपने पितर लोगों के लिए मतलब 15 डेज उन लोग बाल को धोते नहीं है, उनको जल चढ़ाते हैं और ये सब करते हैं। तो वो ठीक नहीं होता है क्या सर? ऑफ कोर्स वो रिचुअल है ना, आपको अभी तो पता है, तो वो चीज गलत तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो आपको कुछ लोगों को फायदा देती है और लॉन्ग टर्म में वो नुकसान ही पहुंचाती है। आप शूद्र शक्तियों को बुलाकर ही काम करवा सकते हैं ऐसे। जो जनरली ये जो शक्तियां होती हैं जिस तरह से हम कर रहे हैं, उससे नेगेटिव पावर्स जो होती है वो आराम से मजे में आ जाती है। तो वो हमारा काम तो कर देती है छोटा मोटा। ऑब्लिगेशन में जाएंगे, जब आपकी मृत्यु होगी तो अपमृत्यु होगी, आप दूसरे लोक में जाएंगे, वहां सफर करेंगे क्योंकि आप उनके ऑब्लिगेशन में हैं। तो पहले तो आपने अपना पुण्य नष्ट कर लिया ये करके। दूसरा, ये रिचुअल अपने आप में खराब है क्योंकि आप जिसके लिए ये कर रहे हैं वो चीज गलत है। तो ये सारी प्रोसेस गलत है एक्चुअली। एक रिचुअल है जो खराब रिचुअल की संज्ञा मानी जाती है, जिसका कोई वैदिक बेस नहीं है एक्चुअल। सर मुझे और एक पूछना था, अगर हम लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं उसमें रोज सुबह उठ के नहाने के बाद काला तिल और गुड़ डालते हैं, उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना सर? काला तिल तो नहीं डालते, हम तो अक्षत डालते हैं एक्चुअली। भगवान सूर्य को तो अक्षत डाला जाता है और सिंदूर डाल के किया जाता है जल के अंदर। सर ओके, फिर मैं कल से ये करूंगी। सर तीसरा ना, मैं ना शिव महापुराण का जस्ट 2 लेसन रोज पढ़ती हूँ ऐसे ही, वो उससे कुछ वो ठीक है? उससे कोई नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। कुछ नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ दीपक जी बोलिए। दीपक जी आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो। ज्योतिर्मय रे। हेलो। ज्योतिर्मय रे, कैन यू हेयर मी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते सर। हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग जेमस्टोन्स पहनते हैं, तो सर वो जेमस्टोन्स अगर किसी कारणवश ब्रेक हो जाए तो वो क्या कारण होता है, और अगर ब्रेक हो जाए तो क्या उसे पहनना चाहिए? हेलो देखो, जेमस्टोन जो होते हैं ना, एक तो आप ये स्पीकर ऑन ऑफ कर दो। ऑफ कर दिया? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। ओके। आपने मेरे ख्याल से हेडफोन्स नहीं लगा रखे, आप स्पीकर फोन पे सुनने की कोशिश कर रहे हो और वो रिबाउंड मतलब रिबाउंड हो रहा है आवाज। ऑन मत करना, आप सिर्फ सुन लो पास से उसको। देखो, जेमस्टोन्स जो होते हैं उसमें हार्डनेस होती है टेक्निकली, ये टेक्निकल वर्ड है। कुछ जेमस्टोन सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं।
जेमस्टोन्स कभी भी टूट सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है, ये सिर्फ कहानियां हैं। लोग बना देते हैं कि भैया जेमस्टोन टूट गया तो कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जेमस्टोन किसी भी वजह से टूट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पन्ना जो होता है बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, आप उसे लास्ट वाली फिंगर में पहनते हैं, बुद्ध की फिंगर में, तो वो कई बार टकरा जाती है उंगली और टूट जाता है, उसमें क्रैक भी बड़ी जल्दी आती है और डैमेज भी बहुत जल्दी के लिए माइंस में बहुत जबरदस्त तरीके से विस्फोट किए जाते हैं आजकल। पहले तो नहीं किए जाते थे, अब तो वही किया जाता है। तो उसमें फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जेमस्टोन्स में। तो फ्रैक्चर्स आपको दिखते नहीं है क्योंकि उसमें केमिकल्स भरे हुए होते हैं, थोड़े टाइम बाद वो केमिकल्स बाहर आ जाते हैं, जेमस्टोन टूट जाते हैं। कुछ जेमस्टोन्स जैसे एमरल्ड है वो सॉफ्ट ही होते हैं, तो वो अपने आप टूट जाते हैं। तो देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट इट, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात इफेक्ट की, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो और वो कैसे करते हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजी का एक पूरा पार्ट है, वो एक हिसाब है उसका पूरा क्या पूरा। और सर एक होता है लैब ग्रोन जेमस्टोन और एक होता है नेचुरल जेमस्टोन, तो आप क्या प्रेफर करोगे, नेचुरल या लैब ग्रोन? ओके, अब स्पीकर फोन ऑफ करो, बताता हूँ। देखो, लैब ग्रोन जेमस्टोन जो होता है उसकी कभी केमिकल कंपोजिशन स्टडी करोगे तो पता लगेगा कि वो नेचुरल स्टोन से बिल्कुल अलग होती है, उससे मैच नहीं करती है। तो जो नेचुरल स्टोन होता है इफेक्ट वही डालेगा, लैब ग्रोन स्टोन इफेक्ट ही नहीं डालेगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ओके, रेन, रेन कैन यू हियर मी? एक तो अलग अलग नाम है, बारिश, पता नहीं किसने क्या क्या नाम रखे, अपने असली नाम लोग क्यों नहीं यूज करते, मुझे अजीब लगता है। बताइए। सर आपने बोला कि जो पंच महाभूत रहते हैं वो सारी मेमोरीज एनर्जी सारी स्टोर करते हैं, तो सर जैसे हम वीक फेज से गुजर रहे होते हैं तो वहां पे भी तो हमारे आसपास भी हमारे कपड़े सामान में भी तो ऐसी वीक एनर्जी इकट्ठा हो जाती होगी, बिल्कुल तो होगी। फिर उसको फिर कैसे ठीक कर सकते हैं बाद उस में? समय तो ठीक नहीं कर सकते, जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो गए वो ठीक नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, वो डिपेंड करता है, देखो किस एनर्जी लेवल पे थे, किस लेवल पे आप डिप्रेस थे, कितनी टेंडेंसी, कैसी टेंडेंसी डेवलप हुई, तो उन कपड़ों में वो एनर्जी रहेगी। जब भी आप वो कपड़े पहनेंगे वापस वो एनर्जी आपको महसूस होगी। तो जो सेंसिटिव लोग होते हैं उन्हें वो चीज़ महसूस होती है, आसपास के एनवायरनमेंट में भी वो एनर्जी रहती है। जब आप अच्छे काम करना शुरू करते हैं तो वो एनर्जी चली जाती है पॉजिटिविटी के साथ। तो ऐसा कोई सख्त रूल नहीं है कि वो कैसे काम करती है, बशर्ते कि बहुत ग्रूसम हिस्ट्री ना रही हो वहाँ की, तब तक ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए आपको। थैंक यू सर। हाँ सौरभ, सौरभ जी आवाज आ रही है मेरी? आपके पीछे से भी आवाज आ रही है मुझे ऑडियो में। एक मिनट, वो ब्लूटूथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ओके। ब्लूटूथ क्यों लगाया था? वायर्ड हेडफोन से बेटर होते हैं। अच्छा, हाँ, am I audible, प्रणब पंडित जी? नहीं, आपकी आवाज कट के आ रही है बहुत ज्यादा। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है ब्लूटूथ? कोई बात नहीं सौरभ, ठीक, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने, ठीक है? हेलो, अभी आवाज आ रहा है मेरा? आवाज तो आ रहा है लेकिन पीछे से एक साथ में और आवाज भी आ रही है। चलो बोलो, कोई बात नहीं, आप बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। श्री कोई बात गुरुदेव दत्त। नहीं, ओके। पूजा गगोरिया, बोलिए पूजा। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ पूजा बोलिए। जी नमस्ते सर। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि ये नारायण बलि पूजा दो टाइप की होती है ना सर? एक तो नारायण नाग बलि पूजा होती है और एक नारायण बलि पूजा होती है सर। हाँ बिल्कुल होती है, दोनों अलग अलग होती है। नारायण नागबली तब होती है जब आपके पितरों में से कोई नाग की फॉर्म ले लेता है, उस केस में, ओके। या फिर आपके हाथ, आपको कोई नागदोष होता है साथ में, तब ये पूजा की जाती है, तब दोनों को एक साथ किया जाता है। पर अगर नागदोष बड़ा होता है तो फिर ये पूजा काम नहीं करती, फिर नागदोष के लिए आपको अलग से पूजा करवानी पड़ती है, अलग जी जगह पे सर। जाकर। जी सर, आपने सजेस्ट किया था ये कुक में जाके, कुक नारायण वो, क्योंकि सॉरी कुक। हाँ सर।
तो पहली पूजा वो कूक वाली करानी चाहिए ना सर, उसके बाद जी ही पितृ पूजा होती है ना सर? बिल्कुल, ये अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना? तो फिर पहले दोष निकाला जाता है, उसके बाद आप फिर आपने कहा था कि ये नारायण बलि पूजा वो भी 3 दिन की होती है सर? नहीं, नारायण बलि के साथ में 2 पूजाएं और होती हैं, तब 3 दिन की होती है, वरना तो एक दिन में हो जाती है 5-6 घंटे। अच्छा, अच्छा, तो फिर नारायण ये बलि के डिवाइड साथ, हो गई है सर? हाँ, नारायण बलि, तिल होम और वो त्रिपिंडी श्राद्ध तीनों कई बार एक साथ करने पड़ते हैं, उस केस में 3 दिन। अच्छा, अच्छा, ओके सर, तो फिर ये वाली पूजा 2 दिन और वो 1 दिन, अच्छा, वैसे वैसे देखा जाए तो ये हाँ, 3 वो डेज़ तो का आपको हो गया मंदिर सर। जब आप जाओगे ना, तो हाँ, अपने आप ही पंडित आपको बता देंगे कितने दिन की पूजा, दैट इज नॉट एन इशू। जी सर, दैट इज़ व्हाट सर, ये क्लियर करना था। बहुत-बहुत थैंक यू सर। ठीक है, आई थिंक आई शुड स्टॉप द स्पेस नाउ बिकॉज इट्स टू लेट। 10:30 बज चुके हैं। मैं थोड़ी देर बाद सोने चला जाता हूँ एक्चुअली। तो मैंने जितनी कोशिश करी उतने लोगों को जवाब तो दे दिया, कुछ रह गए हो तो आई एम रियली सॉरी। आप मुझे मैसेज कीजिए, कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शांति से मेरी सारी बातें सुनी और जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे उनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ही आंसर पैदा होते हैं। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभ रात्रि। धन्यवाद।